that the Senate of Liberia also stood up in one voice and for 1 minute observed silence for India and for Pahalgam. So I believe this is something that I take as a positive out of the activities that have been done. I have 30 seconds and I'll close. We do not wage war. We do not seek glory. But when our people are attacked, India responds with a fury that is disciplined, deliberate, and devastating. In just 22 minutes, we proved that our silence is not weakness, it is readiness. All those armed forces who fought for us, their names may not be on social media trends, but in the hearts of 1 billion Indians, they will remain eternal. And I close with this. May their bravery shine eternal. And may we, in this house always, be worthy of the protection they provide to us, sir. I thank you, sir. Thank you. You're perfectly on time. Sri Birendra Prasad Bashya. Oh, no. Yes. Thank Sri you. Birendra Prasad Bashya, you have 7 minutes. Thank you, Chairman, sir. Salute to Indian Armed Force. I raise here today speak on Operation Sindur on behalf of people of Assam, my party, Ahom Gana Parishad, and my party President, Atul Bora. Sir, being Indian, everybody should salute great Indian force for their great service to the nation to destroy terrorist hub of Pakistan. Sir, I like to compliment our Honorable Prime Minister and our own government for historical successful Operation in Sindur, sir. Operation Sindur, sir. Sir, for the first time in the history of India, Indian Armed Force entered inside the Pakistan and destroyed Pakistani airbase, Pakistani terrorist hub totally, sir. Sir, when Laden was attacked, when Laden was killed, many people, those although they are Indian, they don't like to support our government. They proudly said Laden was killed, America was too brave. But when Indian Armed Force, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, destroyed terrorist hub in Pakistan, they are not speaking anything because silently they are not silent, they are supporting India, but silently, indirectly, directly, they are supporting to Pakistan, sir. Sir, I like to warn these people who silently supporting Pakistan, sir. But one thing I like to remind them, they cannot compare India with Pakistan in any form. Today, our defense force self-sufficient. By 2029, Indian defense force will be the Indian defense sector will be the self-sufficient. And today, our defense sector earning more than 30,000 crores, sir. And by 2029, it will be target fulfilled by 50,000 crores, sir. Sir, India believes in democracy. They believe in Pakistani believe in terrorism. India economically a very high standard. We are the third largest economy of the world, and Pakistani armed force is bankrupt today. Sir, not only here, in the cricket, India always defeats Pakistan. Not only that, in India, hockey, men and women always defeat Pakistan. This is my country, India. Don't compare with Pakistan. Silently, who are supporting Pakistani, I warn them, forget about your so-called Pakistanism. So these people, one hand, they speak we are united. In other hand, they're questioning
the bravery of our students, our armed forces. They are not recognized victory of Sindoor. They are asking just one question: how many casualty lost by India, sir? But one thing, sir, if you compare those leaders who are Indian leaders, who are Indian but silently supporting Pakistani, their statement equal to the statement given by the Pakistani, sir. So there is no difference. Those people and Pakistani spokesman, in the name of India, they are speaking on behalf of Pakistan, sir. Sir, what was happened, Pahalgam, it was totally responsible than UPA government, sir. Only for UPA government this is happening today, sir. After Pakistani sponsor terrorist attack in Mumbai, then UPA government has not done anything against the Pakistan, not took action against the Pakistan. Internationally, they have not took any stand against Pakistan, and they got the courage. And after that, they are totally now attacking our people in Pahalgam. But don't forget, now there is no UPA government. Now we have a prime minister like Narendra Modi, who can save India. And we are totally trust him. We are totally believe him. We the people of India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we are safe. Our country is safe. Our democracy is safe. If our sovereignty is safe, sir. Sir, after Mumbai attack, if they have tough initiative, this situation was not happening. Sir, I am from Assam. You should know it. I am from a place, small town, Tezpur, sir. In 1960, yes, I am speaking 60, when China attacked India, they came to up to Bombila. And I am from Tezpur. Then Jawaharlal Nehru was the prime minister. Yes, Jawaharlal Nehru was the prime minister. Then government asked us to vacate Tezpur town because China is coming. And what Jawaharlal Nehru has done, you people should know. He has given goodbye to people of Assam. He has given farewell to the people of Assam in the hand of China. But that time Jawaharlal Nehru was the prime minister, not Narendra Modi. If Narendra Modi was there, then this situation is not happening. Dr. Bhupen Hazarika, renowned singer of Assam, India, he sang a song. Henu Himalay Bharator Pohori, Tahani Punisilu Kahini, Pithe Mitak Juan Hobel Theorise, Lage Siro Jagroto Etibahini. My son, Dr. Bhupen Hazarika told, we thought the Himalaya was our protector. In 1960, we thought the Himalaya was our protector. But Himalaya not protect us. So we need a strong armed force. And today, India have this strong armed force. And with this armed force, we can do anything. Sir, thank you. Many speculate about the ceasefire, sir. I telling one story, sir. For the first time, when Indian armed force attacked Noor airfield in the Pakistan, Noor airfield in Pakistan damaged by the Indian armed force. Then Prime Minister of Pakistan himself admitted, after namaz at 4:30, we are thinking about attack India. We are thinking about attack India. Sam, I also thinking to finish, sir. Give me 2 more minutes, sir. We are thinking to attack. I have already given you. No, I have already given you more time. Please. We are thinking about attack to India, but before that, their army chief told him, India destroyed our airfield, our air. They're handicapped. They're crying after finish their airfield. Armed force, Air Force, they're crying and they're knocking every part of the world for ceasefire, and for the first time, Pakistani died Indian defense to go for ceasefire. It is not by India, it is not by Narendra Modi, it is by Pakistani, because we defeat Pakistani, and Operation Sindoor is the most successful operation of our country, sir. Thank you. Sir, thank you. Sir, with this I like to say, yes,
we have to tell trust of Narendra Modi ji. We have to tell confidence of Narendra Modi ji. And I am quite sure, people of India is quite sure, India is safe, Indian people is safe, Indian democracy is safe, Indian sovereignty is safe, Indian foreign policy also safe. Jai Hind, राज्य Jai मंत्री Bharat, Jai Bharat, Jai Bharat. Thank you very much. The next speaker is Ramjilal Suman. You have 4 minutes. आपको 4 मिनट है, समय पर रहिएगा. सभापति जी, मैं सबसे पहले जिन निर्दोष लोगों को मारा गया पहलगांव में, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और सेना के शौर्य को सलाम करता हूं. सभापति महोदय, बार बार सरकार का यह कहना कि हमारे ऊपर ट्रंप का दबाव नहीं था और हमने किसी दबाव में युद्ध विराम नहीं किया, ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है. 10 मई को सभापति जी युद्ध विराम हुआ और 12 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित किया था. उन्हें तत्काल ये घोषित करना चाहिए था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप असत बोल रहे हैं, और हमने किसी दबाव में युद्ध विराम नहीं किया है. सभापति महोदय, इस सरकार ने जो फैसला लिया वो किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं था. हिंदुस्तान की जनता ये चाहती थी कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए और अंतिम रूप से आतंकवाद से निपट लिया जाए, ये देश की जनता चाहती थी. मूल्य हमारी अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, उस परिस्थिति में युद्ध विराम किया. सभापति महोदय, कभी भी देश की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी. और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, इन्होंने अमेरिका के हाथों देश को गिरवी रख दिया है. हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा और गरिमा को सबसे अधिक ठेस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है. सही मानों में इस ऑपरेशन सिंदूर में सेनाएं जीती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारे. सभापति जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहते हैं कि साहब जो पाकिस्तान के सैन्य अभियान निदेशक थे, उन्होंने भारतीय समकक्ष से बात की. सभापति, मैं ये जानना चाहता हूं बात की. कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था. जब बात हुई तो आपने पाकिस्तान को दो टूक क्यों नहीं किया कि हम जब तक युद्ध विराम नहीं करेंगे, जब तक आप यह हमें भरोसा नहीं दिला देंगे कि भविष्य में आतंकवादी घटना को आप संरक्षित नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे. हम तो बहुत जल्दी में थे ना, क्योंकि ट्रंप का दबाव हमारे ऊपर था. सभापति जी, एक निवेदन में आपसे यह करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के जुलाई 2025 तक 91 बार विदेश यात्राएं की हैं. 78 देशों में नरेंद्र मोदी जी गए हैं. 800 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पर अब तक खर्च हुआ है. सभापति जी, ये कैसी विदेश नीति है? कितने दोस्त हमने बनाए? और मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि विश्व की राजनीति में हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं कर पाए. ये कौन सी उपलब्धि है आपकी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी हमारे साथ नहीं है. इससे ज्यादा चिंता का विषय और क्या हो सकता है? सभापति जी, मध्य प्रदेश सरकार के एक उप मुख्यमंत्री, और वो फरमाते हैं कि पूरा देश मोदी जी के सामने नतमस्तक है, पूरी सेना मोदी के सामने नतमस्तक है. सभापति जी, हमने देश की रक्षा के लिए सभापति जी, हमने देश की रक्षा के लिए समर्थन दिया था. हमने तो बीजेपी में है, नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं. हम देश के साथ थे और उसी लिहाज से हम अपना समर्थन दिया था. ये अनावश्यक रूप से जो इस तरह की बात करते हैं,
अगर बीजेपी के लोग ये समझते हैं कि हमारी राय उससे लगे तो उनको तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अजीत कुमार भूया। Thank you, Vice Chairman, sir. Heaven is not going to fall if the government led by Narendra Modi ji takes the August House into confidence to give details of Pahalgam terrorist attack and lapses involved to nab the terrorist. Sir, due to paucity of time, I am not going in details as many learned speakers from both the ruling and the opposition parties have highlighted different facets of opposition Operation Sindoor and Pahalgam terrorist attack. I shall keep myself confined to anger and frustration of victimized families who are eagerly waiting of terrorists in the command of the government. I am sorry to say, sir, that no one, including Defence Minister Rajnath Singh and Foreign Minister Jaishankar ji, have given any suitable reply how the terrorists crossed the border and after attack, whether terrorists have been hiding in the territory of India or crossed the border and taking shelter in Pakistan. Operation Sindoor was appreciated by all sections of people in the country, and people were waiting the solution of Pak-occupied Kashmir. But suddenly, the ceasefire was announced by the US President Donald Trump. However, Defense Minister stated in the Lok Sabha that the war had been paused and the government would teach a very meaningful and tough lesson to Pakistan if Pak-sponsored terrorists dare to act against India. Sir, in brief, I would like to bring certain issues in the knowledge of this House. Why terrorists are not captured yet? Number two, how they entered crossing the border. Whether there were intelligence inputs, and if so, why follow-up action and counter-action were not in order? Why Modi government has not responded on Donald Trump's assertion on ceasefire? What is the net impact of outreach operation by political parties of different states? Is the government led by Modi going to engage Pakistan into dialogue? And if not, what is the solution of Pakistan-occupied Kashmir? Last, not the least, will the government assure the House that if again Pakistan-sponsored terrorists dare to repeat Pahalgam-type attack, the government will not do pause? Sir, I conclude. मैं तो देखता रहा, तुम तो दिलासा देता रहा. मैं तो देखता रहा, तुम तो दिलासा देता रहा. पर मैं तुम पर अभी भी यकीन कर रहा. लेकिन तुम पर यकीन ना करूं तो मेरा पास क्या रास्ता है? और एक बात पक्की है कि तुम हमेशा झूठी यकीन ना दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी तो एक दिन जाना ही होगा. जय असम, जय हिंद. Thank you for being completing on time. Sri Sanjay Raut ji, you have 4 minutes. 4 मिनट है. बाप रे, बहुत दिया सर, इतना मत दीजिए, बहुत दिया. 16 घंटा चर्चा है और 4 मिनट दे रहे हो आप. आपके पार्टी को जितना दिया आपने लिया होगा. पार्टी की बात छोड़ो, आपने ही दिया. दे रहे हैं. सर, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा जी. पहलगांव में 26 लोगों की हत्या हो गई. कैसे? अब तक सरकार नहीं बता पा रही. पूरा कश्मीर गृह मंत्रालय के अधीन है. 370 हटाने के बाद
कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है। पूरे कश्मीर में आर्म फोर्स एक्ट लगा दिया है। वहाँ के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है। फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। गवर्नर ने भी अपनी चूक मान्य की है कि ये चूक हो गई है, सुरक्षा में चूक हो गई है। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा जिम्मेदारी लेकर? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं? ये आपने क्यों भांप नहीं लिया? ये हमारे सामने और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मैं कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनसे कहना चाहता हूं, मेरे बाजू में बैठे हैं, यहाँ कल से मैं जो बड़े बड़े भाषण सुन रहा हूं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा एक कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। बात ऐसी है कि नेहरू साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी थे, सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अगर सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आज प्रतिबंध लगा देते। समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए। फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहां बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। सर नहीं सर, सरकार ने आपका समय समाप्त हो गया। मैंने बोला था आपको, लेकिन आप उलझे हुए थे। मैंने आपको बोला था। सरकार बोल रही है समय समाप्त हो गया आपका। हमारे सामने, अब मैं नेक्स्ट स्पीकर बुलाऊंगा। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सीजफायर कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए। अगर युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम के बदले में हमको क्या मिला? आप मुझे बताइए। बात तो पीओके पर होनी थी, क्या पीओके मिला? समाप्त कीजिए। धन्यवाद। कम से कम जो कुलभूषण जाधव 15 साल से उस जेल में तड़प रहा है भारत का, उसको तो छुड़ाना चाहिए था। एक तो बात करनी चाहिए थी, हमारा कुलभूषण जाधव स्पीकर बुला रहा हूं, संजय राउत साहब, अब सीनियर मेंबर है, 15 साल से तड़प रहा है, उसकी तो मांग होगी। हमारे पास से मछुआरे Nothing will go on record except धन्यवाद उपसभापति महोदय। उपसभापति महोदय जी, इस सदन में कई घंटों से पहलगाम के इस विषय में चर्चा बड़ी गंभीरता से हो रही है और मैं खास करके
इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस चर्चा को पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और हमारी ये उम्मीद हमारे साथियों से, खास करके हमारे विरोधी भाइयों से यही है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। आज जो भी घटनाएं हुई है उसको पूरे विश्व भर ने कंडेम किया है कि आतंकवाद को कोई भी समर्थन नहीं देगा। आतंकवाद के साथ जो भी देश है उसको साथ में कोई साथ नहीं देगा। और जब यह होता है, सामने से जो बयान किए जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट के ऊपर जो आलोचना की जाती है, वो बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि जब इस गंभीर विषय पे चर्चा होती है तो उम्मीद यह है कि पूरा देश एक संग होकर पूरे दुनिया को दिखा दे कि हम पाकिस्तान को किसी भी हालत में आतंकवाद को समर्थन नहीं देंगे और उनको बिल्कुल करारा जवाब देंगे। ये हमारा फर्ज बनता है। और बदकिस्मती से ये चर्चा जो होती है उसके माने आज हमारा देश डिवाइडेड है क्या हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये आज सोचने वाली बात है। उपसभापति महोदय, आज जिन 26 लोगों की जानें गई हैं उनके दुख में हम सब शामिल हैं। वो परिवार के साथ हम सब मिलकर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से कामयाब किया गया है उसकी भी प्रशंसा इस वक्त होनी चाहिए। हमारी पुलिस, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ये सब ने मिलकर जिस तरीके से और जिस प्रिसीजन से इस पूरे ऑपरेशन को संभाला है और अंजाम दिया है, हैट्स ऑफ टू आवर डिफेंस फोर्सेस कि जिनके वजह से आज देश को एक बहुत तगड़ी ताकत मिली है। मेक इन इंडिया का जो सही असर है वो आज दिखाई दे रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस के जरिए हो, चाहे वो हमारे जो मिसाइल से उसके द्वारा हो। जो डिफेंस के बारे में यहाँ कुछ हमारे साथियों ने कहा कि हमारी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, हो सकता है, पर हमारे डिफेंस की एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है, हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन कितना बड़ा है, ये भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो सदन के सामने प्रधानमंत्री जी और अन्य हमारे सम्मान्य नेताओं ने यहां पर जिक्र किया है। तो सवाल यह है, जब ये अच्छा कुछ होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पूरे विश्व भर में इसकी आज इस ताकत को आज समझा जा रहा है और इसीलिए मेरी विनती यह रहेगी, ये जो काम अंजाम दिया गया इस ऑपरेशन सिंदूर को, जब सवाल उठाए जाते हैं कि आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए, क्या हुआ उनका, तो ये आज ये स्पष्ट हुआ है कि कल पर 3 दिन पहले सोमवार था, श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन ही तीनों आतंकवादी को मारा गया है। ये हमारी सही उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय। अब मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि मुंबई, आज इस सभागृह के सदस्य नहीं है, पर मुंबई में एक बयान आज जारी हुआ है कुछ हमारे नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, कि इसको ऑपरेशन जो ये श्रावण मास के दिन पर ऑपरेशन महादेव किया कहा गया है, वो एक पोलराइजेशन के साजिश के तहत कहा गया है। बड़ी ताज्जुब की बात है। इस ऑपरेशन महादेव की सक्सेस स्टोरी को दोहराना जरूरी है। आतंकवादी तीनों मारे जाते हैं, इसकी प्रशंसा होने के बावजूद, करने के बजाय यहां पर ऑपरेशन महादेव पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। ये बड़ी दुख की और शर्मनाक बात है। सभापति महोदय, पाकिस्तान तो कभी भी इन गलतियों को मानेगा नहीं, आज भी मानेगा नहीं। और मुझे एक खास ये बात याद आती है कि 26/11 का वाकया जब मुंबई में और महाराष्ट्र में हमने महसूस किया, बड़ी करीब से देखा है, तभी कसाब के बारे में ये शुरू में कहा था कि वो हमारा आदमी नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पर जब हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस ने खोज के निकाला कि वो पाकिस्तान का रहवासी है, पाकिस्तान का रहने वाला है, तब इसके बाद में पाकिस्तान ने चुप्पी साधी है। तो पाकिस्तान तो कभी भी इस बात को मानेगा नहीं है। पर हमारे देश के बहादुर जवानों ने यह करके बताया है और ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया है वो बड़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट करने से इसका फायदा ये हुआ है कि हमारे पहली बार हमारे देश ने महसूस किया है कि हमारे ये जो ऑपरेशन हुआ है, हम पाकिस्तान में जाकर घुसकर वहां पर हमारे जो ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, हमारी जो वेपन्स है, उसके जरिए पाकिस्तान में बड़ी हम लोग अंदर जाकर पाकिस्तान में हमला हमने किया है। तो हमारी मेड इन इंडिया वेपन्स का जो कामयाबी है ये उससे सिद्ध होती है। हमारे ब्रह्मोस हमारा सही तरीके से गेम चेंजर रहा है कि जिसके वजह से काफी फायदा हुआ है। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस पूरा हमने नाकामयाब किया। हम बड़े सक्सेसफुल रहे कि हमारी पूरी सिस्टम हमने कामयाबी की और उससे वो भी इंडिजिनस वेपन्स की तौर से हमने ये किया है।
और साथ ही साथ हमने पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स हमारे पे फायर किए वो सभी के सभी नाकामयाब करके हमारी कामयाबी हमने हमारी जो ताकत है वो हमने सिद्ध की है। सभापति महोदय, ये बात तो सच है कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी गई थी, पर ये भी प्रधानमंत्री का जो पॉलिटिकल विल है, बात तो सही है कि बहादुरी हमारी सेना की है, डिफेंस फोर्सेस की है कि जिन्होंने बिल्कुल प्रिसीशन के साथ में ये स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया, पर इसके पीछे जो पॉलिटिकल विल है हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि जिन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से पूरी आजादी हमारे इस फोर्स को दे दी, जिसकी वजह से ऑपरेशन कामयाब हो गया। कहीं पर भी इंटरफेरेंस हमारी सरकार का नहीं रहा, कोई पॉलिटिकल इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा, जिसके वजह से पूरी आजादी के साथ में ये काम हुआ है। सभापति महोदय, एक तो हमारी वीरता का ये प्रतीक है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो कायरता है ये भी यहां पर सामने आई है कि कुछ दिनों के बाद में उन्होंने इसको उनके सीडीएमओ के द्वारा यहां पर विनती की गई है। अब बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने युद्ध विराम किया है, ये किया है, वो उनकी वजह से करना पड़ रहा है। सभापति में ताज्जुब की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान को कोई अहमियत दी जाती नहीं है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल सिस्टम को हम बाजू में रखेंगे, पर हमारे डिफेंस फोर्सेस के अफसरों ने जो ब्रीफिंग दिया है उस पर विश्वास नहीं है। ट्रंप क्या कहता है उस पर विश्वास है, हमारे सिस्टम क्या बोलती है उस पर विश्वास नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। ये मामला कोई पॉलिटिक्स में समझ सकता हूं, जब तक इस देश में डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन भी रहेगा, सत्ताधारी पार्टी भी रहेगी, पर ये वक्त नहीं है कि जब ये इश्यू को हम पॉलिटिसाइज करें और एक दूसरे के ऊपर लांछन उठाकर एक दूसरे को बदनाम करने की जो प्रयास हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने जो बयान दिए है, हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो बयान और ब्रीफिंग दिया है, उसकी सच्चाई को कहीं भी डाइल्यूट करने का प्रयास सभापति महोदय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज ताज्जुब की दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे विपक्ष के नेताओं ने इस लड़ाई को छुटपुट का युद्ध कहा है। सभापति महोदय, मतलब ये मामूली सा युद्ध था, छोटा सा युद्ध था, छुटपुट की लड़ाई थी, ऐसा बयान बदकिस्मती सामने से आया है। तो आप देखेंगे कि ये पहली बार है कि यूज ऑफ मिसाइल्स हुआ है, ब्रह्मोस के जैसे स्काल्प क्रूज को इस्तेमाल किया गया है। पेचोरा हो, क्रिस्टल मेज हो, रुद्राम हो, आकाश हो, ऐसे जैसे वेपनरी जो कभी आज तक यूटिलाइज नहीं की गई थी वो इसमें यूटिलाइज करके जो लश्कर तोयबा के बेस था मुरिदके में, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स बहावलपुर में, हिजबुल मुजाहिदीन का बेस था मुजफ्फरबाद में, तो ये जितने टेररिस्ट कैंप्स थे, कोटली, गुलपुर, शक्करगढ़, सियालकोट, इसके जैसे जो भी जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको उद्ध्वस्त जब किया जाता है तो क्या इस लड़ाई को छुटपुट का युद्ध कहा जा सकता है? कितनी बात गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, उसका मजाक अगर यहां उड़ाया जाता है तो हमारे जितने सोल्जर्स, हमारे जितने डिफेंस फोर्सेस है, उनकी जो मेहनत है, उनका जो उसमें ताकत से वो जो लड़े हैं, क्या उनका भी काम को हम मजाक उसका उड़ा रहे हैं? तो मैं समझता हूं इस चीज को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इस चर्चा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और उनकी जो वीरता है उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है सभागृह ने, कि जिसकी वजह से आज हमारे देश कामयाबी पर हम लोग यहां पर आज खड़े हैं। सभापति महोदय, एक दूसरी बात जो कही जाती है वो यह है कि हमारे इस एफर्ट को कहीं पर इंटरनेशनल सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति जी, मैं समझता हूं अगर ठीक से इस बात को समझा जाए, ठीक से इसके जो डिटेल्स को निकाला जाए, तो हमारा देश आज विश्व भर में मोदी जी के नेतृत्व में जो भी प्रयास टेररिस्ट के खिलाफ में, टेररिज्म के खिलाफ में हो रहा है, उसके पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है और लोगों ने उसको समर्थन दिया है, ये रिकॉर्ड पर है। अध्यक्ष महोदय, यूएसए, यूके, इजराइल, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, इन सभी लोगों ने हमारे इस मेहनत की और हमारे इस एफर्ट को इसकी प्रशंसा की है। यूरोपियन यूनियन और 27 मेंबर स्टेट्स ने भी अपने बयान देकर इस प्रयास को उनका भी समर्थन यहां पर घोषित किया। समाप्त कीजिए, आपका समय हो चुका है। I just finished in a few minutes. समाप्त हो चुका है। And UK Foreign Minister David Lammy, former Prime Minister of UK Rishi Sunak, Russia,
कि सभी लोगों ने इसको कंडेम किया है, टेररिज्म को, और हमें समर्थन दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर में से 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सिर्फ 3 लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में, तो पाकिस्तान, चाइना और टर्की ने किया है, बाकी सभी लोगों ने भारतवर्ष का समर्थन किया है। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो जारी है और जारी रहेगी, इसका समर्थन पूरे विश्व में मिल रहा है। और इसके बाद ये भी है, और बात ये कही जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के कुछ लोगों को, शिवसेना प्रमुख को वहां पर बुला के खाना खिलाया जा रहा है। अध्यक्ष सभापति मोदी, ये बात समझने की है, हर देश की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है। अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता है, किस वक्त कौन से पैतरे खेलता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो किसको बिरयानी खिलाते या किसको नहीं खिलाते, उनका मकसद है। तो ये बात तो जरूरी है कि स्ट्रैटेजी की तौर से भारत जो आज इमर्ज हो रहा है, वो कुछ लोगों को अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए सब पैतरे खेले जा रहे हैं। ये सच्चाई है। और इसीलिए मेरा यही कहना है कि इस चीज को गंभीरता से लिया जाए। हमें ट्रंप क्या कहते या कौन क्या कहते उससे मतलब नहीं। हमारा देश एक मजबूत देश है और उभर रहा है, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री जावेद अली खान साहब, 4 मिनट है आपके। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, अब कहने के लिए, बहुत विस्तार से कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, समय भी कम है। पहले तो मैं जो पहलगाम में निर्दोष नागरिक हमारे देश के शहीद हुए, उनके परिवारों को हमदर्दी और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। दूसरे, हमारे सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, उसके लिए मैं बार बार सेना को सलाम करता हूं। सर, मेरी राय ये थी शुरू में कि बहस पहलगाम पर होनी चाहिए थी, क्योंकि सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, ऑपरेशन सिंदूर, यह निर्विवाद मसला था। पूरे देश के अंदर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दल के नेता ने या किसी भी समूह ने ना तो इस एक्शन पर सवाल उठाया, ना इस एक्शन का विरोध किया, ना सेना पर भी किसी तरीके का सवाल उठाया। इसलिए सिंदूर पर तो चर्चा होने का कोई मतलब था ही नहीं। सैन्य कार्रवाई पर कुछ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ पहलगाम में हम क्यों नाकाम हुए, क्यों हम अपने निर्दोष लोगों को नहीं बचा पाए, इस बात पर विचार विमर्श होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी, और आगे आतंकवाद हमारे देश के अंदर न पनपे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। कल रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चनायर विपक्ष को दिया कि विपक्ष को ये सवाल करने चाहिए थे, ये सवाल करने चाहिए थे, ये नहीं पूछना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था। लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्षा मंत्रालय के जवाब देने का दिन सोमवार होता है हमारे सदन के अंदर, और इस सत्र को शुरू हुए 2 सोमवार गुजर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने न तो तारांकित न अतारांकित दोनों दिनों में एक सवाल भी स्वीकार नहीं किया है। मेरा खुद का सवाल डिसअलाउ हुआ है। जवाब देना नहीं चाहते, सिर्फ भाषण करना चाहते हैं। और भाषण करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनएससी में जो पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया है काउंटर टेररिज्म कमेटी का, उस पर हमारे रक्षा मंत्री जी बोले, यह हैरानी की बात है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाली बात है। लेकिन विदेश मंत्रालय क्या कहता है? मेरे सवाल के जवाब में 24 तारीख को विदेश मंत्रालय कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समिति का चुनाव नियमित वार्षिक प्रक्रिया है। बहुत डाइल्यूट करके कहता है। रक्षा मंत्रालय क्या कहता है, रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, और विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि यह नियमित प्रक्रिया है, यह रूटीन प्रक्रिया है। कम से कम सरकार को, दोनों मंत्रालयों को आपस में सलाह मशवरा करके कोई बात कहनी चाहिए। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं। अभी
मेरे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे, चौहान साहब बड़े अनुभवी नेता हैं, इन्होंने कई देशों का नाम लिया, यूके का, रशिया का, इजराइल का, यूएसए का, फ्रांस का, नीदरलैंड का, जापान का, सऊदी अरब का, यूएई का, ईरान, कतर, पैलेस्टाइन, पनामा, श्रीलंका, मालदीव और ईयू के 27 देशों का, कि सबने हमारा समर्थन किया है। इसके अलावा कई वक्ताओं ने नाम लिया ब्रिक्स का, क्वेड का, एफएटीएफ का, इन्होंने भी किया है। इन्होंने हमारा समर्थन किया है, आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन इनमें से एक भी देश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है और पाकिस्तान को दोषी करार नहीं दिया है। ये वो जगह है जहां आपकी डिप्लोमेसी भी फेल होती है, ये वो जगह है जहां आपकी विदेश नीति भी फेल होती है। इन्हीं शब्दों के साथ कि ऐसे सवालों को जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं, इस पर पूरे दिल को खोल करके बात करनी चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए और विपक्ष को दोषारोपित नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं सरकार भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश शर्मा। धन्यवाद उपसभापति महोदय। एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का समय दिया। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल की वो भयावह घटना पहलगाम की, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खुला रूप को हमें प्रस्तुत करने में वो समय दिया जब निरीह लोगों की हत्या की गई और वो राज्य प्रायोजित वो आतंकवाद का एक स्वरूप था। मानवर, हम बहुत देर से सब चर्चाओं को सुन रहे थे और इन चर्चाओं में जो 22 अप्रैल की घटना से लेकर और 7-8 मई को जो भारत ने एक सटीक हमले किए उनके विभिन्न क्षेत्रों पर, आतंकी क्षेत्रों पर, उनके बीच की घटनाक्रम का मैं वर्णन कर रहा था। अभी तमाम लोग कह रहे थे, माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी वक्ता चले गए, वो कह रहे थे कि युद्ध एक विकल्प नहीं है। कांग्रेस के वो कह रहे थे आर पार करना चाहिए। एक और कोई कह रहे थे कि हमारे पास और विकल्प भी हैं। भारतवर्ष ने सारे विकल्पों को अपनाया और सारे विकल्पों को अपनाने के बाद जब वो नहीं माने तो पहला जो उनके आतंकी अड्डे थे उस पर, उनके 11 जो आतंकी अड्डे थे, प्रशिक्षण शिविर थे, उन पर सटीक हमले हुए। उनके सैन्य या नागरिक क्षेत्रों को नहीं चुना गया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो प्रतिक्रिया में भारत के धार्मिक क्षेत्रों को, स्कूलों को और अन्य नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने के उद्देश्य से जब ड्रोन छोड़े गए, मिसाइलें छोड़ी गई, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने जो जवाब दिया और उस जवाब में अगर हम देखें तो उनका लाहौर, पसरू, चुनिया, आरिफवाला तमाम जो राडार के स्टेशन थे नष्ट हुए। वायुसेना के चकलाला, सरगोदा, रहीम यार खान और तमाम उनके लड़ाकू विमान, आकाश विमान नष्ट हुए। आतंकी जैश व लश्कर के ठिकाने तबाह हुए। दूसरी ओर मरकज तौबा मुरीदी को निशाना बनाया गया। पाक एयरफोर्स क्षमता 5 साल पीछे भी हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों का कहना है। मान्यवर, मेरा इस संदर्भ में कथन यही था कि विपरीत विरोधाभास वाले लोग माननीय प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। कोई ये बोलता था कि प्रधानमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं लेते, जब एक्शन लिया तो एक कड़ा एक्शन क्यों लिया। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक व्यक्ति अपने गधे के साथ में 2 लोग जा रहे थे। एक खाली जा रहा था, लोगों ने कहा खाली जा रहा है, ये पैदल चले। उन्होंने बेटे को बैठा दिया, पिता पैदल चलने लगा। लोगों ने कहा ये बेटा चल रहा है गधे के ऊपर और बाप चल रहा है नीचे। उन्होंने पिता को बैठाला और बेटा नीचे चलने लगा। लोगों ने फिर जब छींटा कसी करी तो दोनों लोग उस पर बैठ गए और चलने लगे। तो लोगों ने कहा अरे ये कैसा बेचारे गधे की चिंता नहीं, दोनों चल रहे। आज विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई कि आप करोगे तो भी आलोचना, ना करोगे तो भी आलोचना। मान्यवर, मुझे तो सुनकर ताज्जुब हुआ, एक विद्वत व्यक्ति का जब उद्बोधन यहां पर हो रहा था, वो विधि वेत्ता है और विधि वेत्ता ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का लाइव टेलीविजन का प्रसारण हो और उसके लिए वो भारत की कमजोरियों का वर्णन कर रहे हैं। और मुझे तो ताज्जुब तो तब होता है कि जब सामने पड़ी खाली हुई सीटें उस समय भरी हुई थी और भरी हुई सीटों के लोग जोर जोर से थपथपा के तालियां बजा रहे थे, जैसे लग रहा था भारत कमजोर है। उसकी
जो वो वर्णन कर रहे थे उस वर्णन का जैसे समर्थन कर रहे हूं। भारत कमजोर नहीं है, भारत वो भारत नहीं है, भारत वो भारत है कि आज पिछले वाले जो सरकारें थी 14 के पहले, जब पाकिस्तान गोली फेंकता था तो भारत के यहां के प्रधानमंत्री के हाथ में सफेद रंग का कबूतर होता था, शांति का प्रतीक। उधर से गोली, इधर से कबूतर, उधर से गोला, इधर से कबूतर। 14 के बाद मोदी जी आए, उन्होंने कहा उधर से गोली तो इधर से गोला, उधर से गोला तो इधर से बम, और अगर उधर से बम तो घर में घुस के मारेंगे हम, और घर में घुस के मारने की वो प्रक्रिया चली। मैं मानवर कहना यह चाहता हूं, ये बदला हुआ नया भारत है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत है। आप पूछते हो कि पाकिस्तान की मजबूती का वर्णन, पाकिस्तान चाइना के साथ भारत को कर लेगा? हमारे देश कहां, जो हमारे सहयोगी देश हैं, आज पूरे विश्व में हमें अप्रत्यक्ष समर्थन मिला है। लोगों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका अधिकार बताया है, लेकिन हमारे यहां के लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत के लोगों को अहंकार है, और अहंकार की सीमा पार करके लोग अपने आप को वर्तमान में प्रधानमंत्री के स्वरूप में अपने आप को आवरण अपने को पाते हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूं, ज्ञानी को और अज्ञानी को दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी हो उसको कोई नहीं समझा सकता। और यहां अभिमानी को समझाने का जो क्रम है, मैंने देखा कि आज यहां पर तमाम तरीके की बातें हुई। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे आतंकवादियों के विचारधाराओं का प्रवाह अपने में लाए होंगे। हम प्रश्न ये है कि भारत का जो भाजपा की भारत की सरकार है और जो पिछली सरकारों की नीयत थी, उनके बारे में जब प्रश्न आता है कि मोदी जी की नीयत क्या है, तो कल का उनका जो उद्बोधन सुना होगा जिसने, मोदी जी की नीयत पाक साफ है। और ये जो पाक साफ है कि नीयत हम जब कहते हैं तो हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो एक प्रकार से व्यंग बनाकर और तरह तरह की चीजों को आज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मान्यवर, ऑपरेशन महादेव की चर्चा हो रही थी, श्रावण का माह है, महादेव की चर्चा होना स्वाभाविक है, और वहां पर आतंकवादी जो सुलेमान है, फैजल है, जिब्रान है, ये सारे आतंकवादी जब मरे हुए पाए गए, सिंदूर का बदला जब हो गया, तो तब लोग बोलने लगे इनकी पहचान क्या है। जब उनका वोटर कार्ड से मिलान हो गया, जब उनकी जो राइफल की गोलियां चलाकर उससे जब साइंटिफिक मिलान हो गया, सारा मिलान हो गया, तब भी उनके पास में एक चीज का मिलान नहीं हुआ मान्यवर, वो थी जो वो लाए हुए टाफी थे, वो टाफी का मिलान नहीं हुआ मान्यवर। मुझको लगता है वो ऑटोमेटिक राइफल लाए थे, वो जाहिर सी बात है आतंक करने के लिए लाए थे, उनका वोटर लिस्ट था, जाहिर सी बात वो अपने को पाकिस्तानी दर्शाने के लिए लाए थे, लेकिन टाफी क्यों लाए थे ये रहस्य अभी तक नहीं खुला। मुझको लगता है कि उनके समर्थन में इस प्रकार का जो वर्णन करने वाले लोग थे, शायद उनका मुंह मीठा कराने के लिए वो लाए होंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि आज ये देश, ये कसाब को भाई कहने वाला, ये देश इस्सत जहां को बेटी कहने वाला, ये देश हाफिज को साहब कहने वाला, ये लादेन जी के नाम से संबोधित करने वाला देश नहीं है। अब ये शेर पर सवा शेर वाला देश है, ये सच का वो प्रस्तुतिकरण करने वाला देश है। ये सच शेर की तरह होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलते थे आप सच कबूलो, सच कबूलो। ये जो सच है वो शेर की तरह होता है और इसे बचाने की जरूरत नहीं होती है, इसे खुला छोड़ दीजिए या अपना बचाव खुद कर लेता है। ये देश बचाव करने के लिए हमें चीन की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। भारत आत्मनिर्भर भारत है, भारत स्वाभिमानी देश है, भारत एक समन्वयवादी देश है। हम हाथ में माला लेकर पूजा करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती तो हाथ में भाला लेकर हम युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इस भारत की भूमि को जो चुनौती देने वाली आतंकी घटनाएं थी, हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये जवाब ऐसे नहीं हुआ है, जवाब इसलिए भी हुआ है कि हमने समय समय पर आतंकी घटनाओं को समाप्त करने का भी काम किया है। मान्यवर, एक किस्सा हम लोग सुनते थे, एक बाटला कांड हुआ था, वहां आतंकवादी मारे गए थे। पता चला एक बड़े नेत्री के घर का जो किस्सा लोग बताते थे उनके नेता, कि रात भर रोते हुए उनका वो रात बीती थी। ये रात आतंकवादियों के मरने पर रोने वाली नहीं है, अब आतंकवादियों के मरने पर यहां पर प्रसन्न होने वाले लोगों का ये देश बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये समझने की जरूरत है इस देश में कि हमारी सरकार ये बताती है कि इस देश में जो अंतर है वो कलाम और कसाब का अंतर है।
कलामवादी जो सोच है वो देश की प्राथमिकताओं में हमारी है। जो कसाब के संरक्षण वाली सोच बनती जा रही है वो देश के हित चिंतन की नहीं है। इसलिए मैं आप सबको ये कहता हूं, अभी तो एक माननीय हमारी सांसद बता रही थी कि आतंकवादी घूम रहे थे, यहाँ पर आतंकवादी हाथ में स्टेन गन लिए घूम रहे थे और वो भी टहल रही थी, और टहलते टहलते उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने सुना था कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब तो आज तो मैंने सुना कि सांसद के मुख सुनी हमने कहानी थी कि वो आतंकवादी के सामने भी टहली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आवरण झूठ, जो असत्य का आवरण है, ये दर्शाने से आतंकवाद का संरक्षण नहीं होता। मानवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध अगर आ जाए तो युद्ध का अंतिम छोर समाधान जो विकल्प बचता है वो प्रतिकार बचता है, और वो प्रतिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और उस प्रतिकार में केवल यही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का मैं अंत में कह के समाप्त करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई लोग यहां पर अर्थ बोल रहे, कोई फिल्म का बता रहे थे सिंदूर का अर्थ क्या है। एक बार माता सीता ने प्रभु राम से पूछा, प्रभु राम के का वर्णन किया, बजरंगबली ने पूछा उनसे कि माते सिंदूर क्यों लगा रही हो, छोटा सा ये। उनका ये सिंदूर पति के जीवन के संरक्षण का, सुख शांति और संवर्धन का ये प्रतीक है। तो वो सिंदूर जो माताओं के ये मस्तिष्क पर लगा हुआ सिंदूर है, उसको अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप में हमारा भारत का एक सशक्त प्रशासन है, वो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। उसे हमें सहायता की जरूरत नहीं है कि कौन विश्व का देश आएगा। हम कभी याची हुआ करते थे, सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं भारत में आता था और राशन कार्ड से बनता था। आज 10 किलो का राशन बांटने वाला ये भारत है, हम याची नहीं है। 120 देशों में हमने फ्री की वैक्सीन भेजने वाला भारत है, ये दाता है, ये याची नहीं है। अब ये दाता देश बन चुका है, ये सशक्त भारत है, और ये सशक्त भारत ये युवा भारत है, और युवा भारत आज जवाब देने की स्थिति में है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर इस भारत की अस्मिता का, एक भारत के सम्मान का, यहाँ के हमारी बहनों के भाव का रक्षण का ये प्रतीक बन चुका है। और ये सफल इसके ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी सेनाओं को जहां हम साधुवाद देते हैं, वहीं एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी को भी हम उनका स्तुति गान इसलिए करते हैं कि उनके सबल नेतृत्व में इस प्रकार की प्रक्रियाओं का संपादन हुआ। धन्यवाद। श्री हरीश बिरान। Thank you, sir. On behalf of my party, the Indian Union Muslim League, I condemn this incident, the Pahalgam incident, in the strongest possible terms and salute the armed forces for keeping our sovereignty intact. Sir, a victim of this Pahalgam terror attack who came from Ernakulam, one 65-year-old N. Ramachandran, I went to visit his house. When I was visiting his house, his daughter, Aarti Menon, was giving a press interview. And she was sobbing, she was heartbroken. But what she told the reporters was that I got 2 brothers from Kashmir, one Musafir and one Samir, and they stood by me at the time of crisis. This is the spirit of the nation, sir. But what happened next? She was brutally trolled in the social media. And Colonel Sofia Qureshi, we know the story of Colonel Sofia Qureshi, who was a heroine. She was also attacked by a BJP minister, but no actions taken. So there was insult to the womanhood, insult to armed forces, and which was insult to the nation itself. Sir, as a nation, it is our primary duty to secure justice for those people who lost their lives in Pahalgam. So we have to examine how this Pahalgam happened. Sir, I was a part of the all-party meeting just 2 days after the Pahalgam attack. The officer who was briefing us at that point of time said that normally this Baisaran Valley, it opens in mid-June for the purpose of Amarnath pilgrims and the tourists. But this time it opened in April 20th, and this was not known to the security forces, which was a very surprising statement. So that means there was no security in the Baisaran Valley at that point of time, and our forces did not know that the tourists were actually going to this particular place from April 20th. So for 3 days our security forces did not know. So 2 things are very clear. There has been an intelligence failure and there has been security lapses. These 2 things have been admitted. Now what is next? There has to be some accountability. Somebody has to fix the issue.
What is the accountability issue which you have done for the last 3 months? It has been almost 100 days. Is anybody made accountable? Is any officer made accountable? Is any minister made accountable? I think the Home Minister has to reply on this issue. Now, our response was Operation Sindoor. Now, sir, I don't know why we waited for 15 days. We waited for 15 days and told the entire world that we are going to retaliate, we are going to retaliate. This was like an advance warning to the terrorists that you please go and hide anywhere. So this kind of a thing that we are going to retaliate as an advance warning, I think we should not have made. Now, sir, we are projecting this particular Operation Sindoor as a flawless military and diplomatic victory. We want to believe that. We actually want to believe that. But there are a lot of sources which have actually challenged that particular claim of us. Now, there is a chart, sir, which I have prepared. This particular chart says that we know what President Trump said. He said, I'm just quoting him, I think 5 jets were shot down actually. Now, the US officials via Reuters says, highly confident that the Pakistan Air Force had used Chinese-made J-10C fighter jets, shooting down at least 2. Then the Pakistan ISPR says, down 3 Rafales, a MiG-29, a Mirage 2000 and an Su-30 MKI. Now, our CDS General Chauhan says, some fighter jets were lost, numbers are not important. Now, our PIB, the Indian government's PIB says 0 assets loss, without loss of any Indian assets. Now, sir, who is telling the truth? We don't know, sir. Who is misleading us? We don't know, sir. The government has to make it very clear that whatever Trump has said is wrong, whatever CDS Chauhan has said is wrong, whether PIB is correct or not. Sir, this has to be answered in the House, sir. Now, on the diplomatic front, sir, according to me, it is not a very happy situation in the diplomatic front, sir. How many countries supported us, sir? The key partners, sir. Key partners followed a predictable pattern, quote-unquote restraint, quote-unquote de-escalation. There was no joint statement, sir, condemning Pakistan. Now, IMF's approval of $1 billion loan to Pakistan at this time of crisis, despite our dissent, sir, our extensive diplomatic reach, sir, whether it failed to convince our partners, sir, that please don't give the money, sir. Trump inviting Asim Munir, who is the chief architect of all these things, sir. Now, what is a shift in foreign policy? I am unable to understand what is the shift in the foreign policy, sir. Lakhs of people are dying in Gaza, sir. We are the epitome of human rights. We were supposed to be the epitome of human rights. But there is no word from us, sir, that lakhs of people are dying in Gaza, but still we will not do any help to the victims of Gaza. So, sir, we are committed to this, sir. But how does the government reconcile its claim of isolating Pakistan with these events, sir? Let the minister show a single instance of a comprehensive strategic partner providing material support to India, especially when contrasted with support given to Pakistan by China, sir. Now, sir, this was fought not only on the ground, sir, but on social media and online also, sir. Following Operation Sindoor, sir, we witnessed a wave of disinformation, videos, images and false claims to discredit our forces, sir. We saw what is happening in social media, sir. One young lady who lost her husband in Pahalgam, sir, she said, she appealed for peace, sir. She was brutally trolled, sir. Now, sir, we know how the war reporting in the media was, sir. It leaves much to be desired, sir. Now, sir, we must therefore empower our information technology ministries, sir. We should empower our cyber security systems, sir, the MEA, the PIB, etc., to act swiftly in these cases, sir. Now, sir, we are all with the government in this issue, sir. However, the government is answerable to the questions, sir, which the parliament raises, sir. Now, sir, the honorable leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, who is himself is a victim of terror attacks. He lost his father, he lost his grandmother. When questions are asked, the answer should not be that you are speaking the language of Pakistan. That means that you don't have any answer, sir. We will be forced to believe that you don't have any answer, sir. Now, sir, I am concluding, sir. I am concluding with this particular quote, sir. Now, this operation, sir, it brought the government, it brought the opposition, it brought the armed forces, and it brought the people forward, people united, sir. Let us carry this forward, sir. But while we carry this forward, sir, we have to remind ourselves that national honor is not just an idea, but a promise. And to keep that promise, we must always be willing to act and to learn. So now, sir, just one request, sir.
We are actually debating the terror victims of Pahalgam, our brothers who were killed in Pahalgam, sir. I think it will be appropriate that the House actually stands in 1 minute silence for these victims, sir. We have not done that, sir. We have to do that, sir. It is for our own brethren, sir. I think we should actually stand in silence for as a mark of respect for these brethren who have been killed in Pahalgam, sir. Jai Hind. धन्यवाद. नेक्स्ट श्रीमती किरण चौधरी, 5 minutes. थैंक यू सर. सर, मैं श्री R.J. कार्तिक की चपाइयों से कुछ बोलना चाहती हूँ. पल ना गवाया सेना ने बहनों को न्याय दिलाने में, घुसकर मिसाइल छोड़ दी आतंकी ठिकानों में. दरिंदों असुरों के घमंड को चूर चूर कर दिया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया. अध्यक्ष जी, हमें गौरव होता है कि हमारे पास एक ऐसा सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण हमारी सेनाओं ने एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो है पाकिस्तान को दिया. हमें जो है मानना चाहिए इस बात को कि ये जो आतंकी हमला हमारे ऊपर हुआ, ये हमारी भारतीयता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार था. और ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम शुरू हो गया था पर्यटन का, लोगों की जो है जिंदगियां जो है समन्वय तरीके से चल पड़ी थी, उसको तहस नहस किया जाए. ये चाहते थे कि धर्म और सांप्रदाय को फैलाया जाए, और इस तरह की घिनौनी हरकत करके अध्यक्ष जी इन्होंने हमारी राष्ट्रीय आत्मीयता के ऊपर जो है हमला करके एक नफरत फैलाने का जो है कार्रवाई करने की कोशिश करी, जिसके ऊपर हमारी सेनाओं ने, हमारी शक्त नेतृत्व ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया. अध्यक्ष जी, बहुत सारे युद्ध हुए. मैं एक फौजी की बेटी हूं और मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह एक वॉर वेटरन थे, और हमेशा ये बात उनके मुंह से मैंने सुनी कि हर युद्ध के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि जो एडवांटेज हमारे को लेना चाहिए, जो हम पाकिस्तान को बार बार खदेड़ते हैं, लेकिन वो एडवांटेज हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा जो नेतृत्व उस समय का था वो एक पैसिव नेतृत्व था, जिसने आगे कभी सोचा नहीं. ये एक फौजी के घर की बात बता रही हूं मैं. हमने अपनी सारी उम्र नॉन फैमिली स्टेशंस के अंदर बिताई. हम जानते हैं क्या हालात होते हैं अध्यक्ष जी. और इसके साथ साथ मुझे बड़ा दुख होता है जब ऑपोजिशन बेंचेस से जो है हमारे विपक्षी भाई इस तरह की बहनें इस तरह के शब्द यूज करते हैं कि कोई किसी तरह की पॉलिटिकल विल नहीं थी. मैं पूछना चाहती हूं इनसे, पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल विल होती तो जब उस समय इस तरह के जो हमले हुए, इस तरह की वारदातें हुई, युद्ध हुए, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा युद्ध हुआ और हम जीत के निकले, आपने तब जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द क्यों नहीं करा? 80% जो पानी हमारा जाता है पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बैठे रह गए. आज अगर वो पानी हमारे को मिला होता तो हमारे किसान भाइयों की आंखों के अंदर खून नहीं होता, आंसू नहीं होते, उनका जो है खेतों के अंदर पानी होता. आज उनके आंखों के अंदर आंसू. इस तरह से चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा उधर का जम्मू कश्मीर हो, जो पानी हमारा अधिकार था वो अधिकार हमारा उठा के दे दिया. तो अध्यक्ष जी आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? एक हमारे माननीय जो हैं उन्होंने ये बात कही कि इस तरफ जो लोग बैठे हैं ये शब्द यूज करा सर्वाइवल. डू दे इवन अंडरस्टैंड व्हाट सर्वाइवल मीन्स? If anybody is survival, is those people who are sitting on the opposite side, I would like to say. एक हमारे भाई ने कहा, हमारे माननीय सदस्य ने कहा, war is no solution. इतनी बड़ी बात कही, war is no solution. They don't understand that if you want peace,
you have to be prepared for war. That is the mantra. And that is what our Honorable Prime Minister Modi ji is doing at the present. अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े रहते हैं. उनके पीछे जो है सारी बातें करते रहते हैं. कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ. ये केवल इसलिए क्योंकि ये अपनी जो है, जो इन्होंने जो करतूतें करी, उनके ऊपर पूरी तरह से ये पर्दा डालना चाहते हैं. आज हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व भर के अंदर ये नजर आ गया है कि हिंदुस्तान कम नहीं है और हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर अगर देखी तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे. अध्यक्ष जी, ये जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जरूर बोलते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव इनकी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं आती. ये अगर कोई बात करें, कोई अच्छी बात हो तो उसको हम उठाएं, लेकिन इनका केवल एक काम है रैबल राउजिंग, नथिंग बट रैबल राउजिंग. और अध्यक्ष जी, साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज जो है ऑपरेशन सिंदूर हैज ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज डेस्टिनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अध्यक्ष जी. हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो हमने शुरुआत करी. मेरे पिताजी बताया करते थे उस समय कि किस तरह से जो है युद्ध लड़े जाते थे और युद्ध के अंदर सारा का सारा जो है जो एम्यूनेशंस और आर्म्स होते थे वो पूरे नहीं होते थे. साथ के साथ एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन हमने जो है एस्टैब्लिश करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वो डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्ट्रेंट. आपकी बात हम जो है इंडियन मिलिट्री जो है वी विल स्टार्ट विद रिस्ट्रेंट but we will retaliate, and we will retaliate very hard so that our enemies know that what we mean business. साथ के साथ अध्यक्ष जी 2 मिनट जो है 3 pillars of जो है deterrence जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्टैब्लिश करे. जल्दी से. पहला है any threat to Indian sovereignty will be retaliated and retaliated very, very strongly. Second hai that the bluff that used to be called of the nuclear blackmail, that is not going to hold any good. Next. I mean, now they used to turn the other cheek, but we are not going to do. What difference between the terrorists and the governments that harbor them? और अध्यक्ष जी लास्ट है उसका रिपीटेशन है, हो गया. हमारी सरकार ने सिखा दिया है कि द लेसन इन रिस्ट्रेंट एंड इन कैलिब्रेटेड डिफेंस, और इसके साथ साथ इंडिया हैज कम इनटू अ न्यू अवेकनिंग. मैं एक चुपाई के साथ एंड करती हूँ. एक मिनट, एक चुपाई बोल रही हूँ. हो गया. धन्यवाद सर. आप स्टार्ट करिए. धन्यवाद सर. Respected Deputy Chairman sir. जी. Sir, I rise to take part on the special discussion on Operation Sindoor in response to the Pahalgam attack on 22nd, 2025 April. Sir, before saying some words on Pahalgam attack, terror attack, first of all, I want my party, United People's Party Liberal, and my party leader Pramod Boroji pay homage to the departed souls of the victims of the Pahalgam terror attack. Sir, as soon as we received the news of terror attack in Baisaran Valley, our party officially condemned and stood with the government of India and support the retaliation action that the government has taken. India will never forget the 26 lives lost in terror attack in Pahalgam sponsored by Pakistan. Sir, the Pahalgam attack was pinpoint act of madness to destabilize Indian peaceful region, Jammu and Kashmir. Sir, Pakistan has always been trying to destabilize India's peace and progress by sponsoring terrorists several times in Indian soil. Sir, Pakistan has always sponsored terrorist attack on pilgrims, our civilians, our famous hotels, attack on our defense personnel. Rather, Pakistan has no courage to attack India face to face. Instead, Pakistan has always been trying to attack India under the cover of terrorists. Sir, Pahalgam terror attack once again proves that Pakistan always sponsored act of terrorism. But let the Pakistan know that India has adopted zero tolerance policy in terrorist activities
and any act of terrorist will be treated as act of war. Our nation is united in handling the terrorists irrespective of differences in party lines. Sir, enough is enough. This is New India, led by dynamic world leader, Honorable Shri Narendra Modi ji. India will not sit back anymore. I appreciate the determined leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in handling the Baisaran Valley terror attack, in taking strong, decisive, but smooth sailing of action on Pakistan in response to the terror attack in Pahalgam. Sir, I appreciate the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji for a successful diplomatic exercise, from preparation of countermeasures to action on terrorism, and also by sending all party high-level delegation to the various nations against the Pakistan's involvement in Pahalgam attack. Sir, I salute and stand with the Indian Armed Forces for the successful Operation Sindoor, launched on 7 May 2025 in retaliation to the Pahalgam attack, where precise and targeted terrorist training camps at 9 different locations within Pakistan and occupied Kashmir were destroyed. This is a strong message to Pakistan and rest of the world that India is always ready to tackle any situation that threatens our national security. Sir, once again, I acknowledge and admit the Operation Sindoor, a strong and decisive retaliation to Pahalgam attack by Indian Armed Forces under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. My salute to all heroes who fought strongly on the borderline and made Operation Sindoor a grand success and made India a proud nation. Sir, I consider that Operation Sindoor has fashioned 3 important values of understanding. That is, number 1, India's military capability and self-confidence in our indigenously developed weaponry power to counter any act of war. Sir, number 2, defensive and offensive capability of India to protect our nation from external threat. Number 3, India's capability to grow up largest economic power in the world. इसके साथ मैं एक छोटा सा बात जोड़ना चाहता हूँ. सर, मैं आसाम से बोडोलैंड एरिया से आता हूँ. और 30 सेकंड. आज का दिन 30 जुलाई. आज का दिन में हमारा बोडोलैंड में एंटी टेररिस्ट डे पालन करता है. हम बोडोलैंड में 28 साल से एंटी टेररिज्म डे पालन करके आया हूँ. आज 30 जुलाई है और इसी के दिन में हमारा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का फॉर्मर प्रेसिडेंट ये टेररिस्ट का शिकार हुआ था. इसके विरोध में आज हमारा एरिया में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हम काम करके आया है. आज भारत का प्रधानमंत्री इसका नियत एक डिसीजन हमको अच्छा लगा, हम सपोर्ट किया. टेररिस्ट जहां भी हो, जैसे भी हो, इसको खत्म करना है. आज पाकिस्तान हम टेररिस्ट को पालन करने वाला देश है, इसको खत्म करना है, टेररिस्ट को खत्म करना है. मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद सर. अच्छे कार्य की सफलता की आपको शुभकामनाएं. नेक्स्ट श्री KR सुरेश रेड्डी, 16 मिनट्स. धन्यवाद सर. मैं और हमारी पार्टी BRS पार्टी की तरफ से, हमारे नेता KCR जी की तरफ से और तेलंगाना की प्रजा की तरफ से जो पहलगाम में शहीद हुए सो टूरिस्ट, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. और साथ साथ पहलगाम के बाद जो पूंछ और दूसरे एरियाज में जो लोग शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सर. और साथ ही साथ इंडियन आर्मी का जो एक्सपीरियंस हमने देखा है वॉर में, उनके जो स्पिरिट जो हमने देखा है, पार्टी की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं. एंड वी ऑल्सो कंडेम पाकिस्तान्स एक्शन इन द होल Pahalgam area, sir. So, Pahalgam attack was a moment of deep sorrow. पूरा देश दुख में था. मगर उसके बाद जिस तरीके से the country had awakened, एक आवाज में, एक स्पिरिट में, और सबके सब जो शहीद हुए सो फैमिलीज और जो लड़ रहे सो जवानों के साथ जो साथ दिए हैं, ये हिंदुस्तान का स्पिरिट शायद कई सालों के बाद हम जैसे लोगों को दिखाई दी से. इसमें देश के प्रजा के साथ साथ देश के ऑपोजिशन जितने भी पार्टीज थे वो सब साथ थे सरकार के साथ. अनक्वेश्चनेबल सपोर्ट सरकार को दिए.
और सरकार भी रेसिप्रोकेट वही अंदाज में आपने दिए हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए और कई मुद्दे जो इश्यूज जो आ रहे थे वो सब ऑल पार्टी मीटिंग में आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए सर। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का बयान था वॉज स्टिल रीअश्योरिंग, या आपने बिहार से हो या दिल्ली से हो, प्रधानमंत्री का जो बयान था इट इंस्टिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर कंट्रीमैन कि हम कहीं भी जाएंगे, आई मीन विल रीच द एंड ऑफ द अर्थ बट वी विल कैच यू एंड गन यू डाउन। जो बात आई है ब्रिंग यू टू जस्टिस, जो बात करें वो सही भी देशवासियों को हिम्मत वाली बात है सर। इन दोस मोमेंट्स नोबडी क्वेश्चन द अदर एस्पेक्ट्स, किसी ने ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस का फेलियर था, ये था। There was no post-morteming of things. The country stood with the government, with the army, with the armed forces in one voice. That was clearly exhibited and we have seen. And what happened when Operation Sindoor started, what Prime Minister said, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है वो clearly reflect हुआ। जब आप हमला किए on the terrorist sites, 7 or 9 terrorist sites पे आप हमला किए, करीबन 100 and above टेररिस्ट को जब उड़ा दिया गया, सो एवरीबडी वे कॉन्फिडेंट, हैप्पी, और रोज मोमेंटम बढ़ रही थी कि पाकिस्तान इज बीइंग टॉट अ लेसन, घुटनों पे लाएंगे पाकिस्तान को। 2-3 दिन फर्स्ट क्लास चला सर, फिर बात ये आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट का चर्चा और बात है सर। अगर 2 कंट्रीज के बीच में जब लड़ाई चल रहा है, एक सुपर पावर नेशन के अध्यक्ष आके मीडिएट करने में, मैं तो समझता हूं उसमें कोई गलती नहीं है, मगर वो अपना सोवरेनिटी में इंटरफियर होंगे और हमारी तरफ से वो डिसीजन लेंगे, सो दिस इज क्वेश्चनेबल। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम when he tweeted and said that both the countries have agreed for peace, और हम तो पीस लविंग देश है, we love peace, और keeping that in mind everybody welcomed it sir. But what really baffled everyone was कि 1-2 दिन के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का और एक ट्वीट आया, I was the one who did it, हमने बताया कि stop the war or no trade. Now this was something which didn't go well with us sir. Stop the war, अगर आप कह रहे थे कि stop the war, no terror, yes, that would have been appreciated. But when you said stop the war, no trade, then that kind of, at that point of time, I mean, questions started coming up. When you look at it, when the whole country was united, a spirited India, when suddenly when we got to see that, we were really deeply saddened by those comments and with not much of response coming from the government side, sir. Sir, national spirit की जब बात करते हैं हम, so वॉर जो है सो ये पहला वॉर नहीं है, कई युद्ध हुए और एवरी वॉर हैज क्रिएटेड अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जब युद्ध हुए तो हम किसी देश के पास नहीं गए। मुझे याद है 1965 वॉर के बाद जब उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को अपील किए कि भाई हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हमको फंड की जरूरत है, तो गोल्ड बॉन्ड्स दीजिए, हम गवर्नमेंट सरकार आपको वापस दे देंगे। सो नेशनल स्पिरिट इतनी गंभीर से दिखाई दी सर उस वक्त कि हर गांव में, उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ जानता हूं, 2 साल का बच्चा था, मैं मेरे माँ के गोद में था और हमारी माँ ने उनके पास जितना भी सोना था 3, 4, 5 तोला, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली का हूं, निकाल के दिए। और उससे बड़ी बात यह है कि न्यूलीवेड जो नए शादी हुई, सो बच्चे भी उनके जितने भी गोल्ड था वो सरकार को दिए। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द नेशनल स्पिरिट व्हाट इज इनग्रेन्ड इन अस सर। हमने कभी धंधे के लिए, ट्रेड के लिए हमें इतनी बड़ी स्पिरिटेड बात को जो है सो कभी ये नहीं सोचे। हम सोचे कि शायद एक आध दिन और जंग चला तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान फिर वुड हैव नेवर लुक बैक एट इंडिया, वुड हैव नेवर डेयर्ड लुक एट इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने उन पे हमले हो रहे थे। मगर पता नहीं, सीज फायर हुआ
तो ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर के बाद इंडियन स्पिरिट को जब मैं देखता हूं तो एक इश्यू याद आई है सर। इंडियन स्पिरिट की जो एग्जीबिशन होती है, आप देखिए सिंदूर के बाद आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट मैच चल रही है। 4th टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। 4th टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 300 साढ़े 300 का लीड लिए हैं और हिंदुस्तान जब अपनी बैटिंग स्टार्ट करती है सेकेंड इनिंग्स का 0 for 2 हो जाती है, तो पूरे हम सोचे कि शायद इनिंग्स डिफीट हो जाएगा, मगर जो स्पिरिट से खेलते गए तो वो तो ये स्कोर तक रीच किए कि जब इंग्लैंड के कैप्टन ने आके बोला भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैच ड्रॉ कर देते हैं। अगर उस वक्त मैच ड्रॉ करते हम तो सारे हिंदुस्तान वाले सोचते थे अरे बाबा बच गए हम, वरना हार जाते थे। मगर अपने बैट्समैन जडेजा, वॉशिंगटन जो बोले कि नहीं हम खेलते रहेंगे, और जैसा खेलते गए सेंचुरीज बनाए। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि आज इंडियन सोच रहे कि अगर शायद उनके पास 2 दिन और था इंडियन टीम को तो RS वो मैच को जिता सकते थे। अब यही बात है कि वहां शुभम गिल को वक्त नहीं था, समय नहीं था, मगर आपके पास समय था। अगर इफ यू हैड कंटिन्यूड फॉर अ डे और टू, probably the results would have been much better, sir. Chairman sir, of course इसका जवाब तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि भाई सीजफायर की कारण क्या है, क्यों अब्रप्टली रुक गया। तो ट्रेड मैं समझता हूं, यस ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट डिस्प्यूट इट, बट ट्रेड एट व्हाट कॉस्ट इज द क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू गेट बैक ऑन दिस, सर। सर, नाउ द गवर्नमेंट मेंशन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मेरे 1-2 सजेशंस है सर। एक पहला तो है कि आर्म फोर्सेस में जो कमियां दिखी है अभी तक, उसमें आप इंटरनली तो असेसमेंट हो गई है, मगर उस पे आप एक जोरदार से एक कार्यक्रम स्टार्ट करिए, नॉट एन एडॉक वे, बिकॉज वी हैव सीन द आर्मी चीफ्स, वी हैव सीन द रिटायर्ड आर्मी चीफ्स, वी हैव हर्ड द ऑनरेबल मेंबर्स, जितने भी कमियां हैं वो बताते आए हमें। तो ये वक्त है कि यू हैव टू फुलफिल इट। जितना भी बजट हो, जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, जितने भी चीज हो, ये आप बिजनेस एज यूजुअल से नहीं बल्कि एक मिशन मोड में लीजिए। सारा देश आपके साथ है, एवरीबॉडी इज विद यू, प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड परस्यू सर। सर, सेकंड ये है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं, वो तो फेल्ड स्टेट है। और वहां का जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल होने दीजिए या मिलिट्री का है, वो हाईली करप्ट और वो खुद के लिए सोचते हैं। अगर आप इंडस वाटर जो बंद किए हैं, ट्रीटी को आप अबेंस में रखें, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी का लीडरशिप को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उनके देशवासियों का देखते ही नहीं। पॉवर्टी रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वहां से जितने भी दिखाई देती है सर, ये साफ दिखाई दे रही है। उनको तो सर पानी क्या है, पानी तो उनके प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल को भरे तो बस है। क्योंकि जैसा कल प्रधानमंत्री जी बता रहे थे अपने कि उनको वक्त गया कि जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान इज ड्राउनिंग, तो वहां तक आप लेके गए। और पाकिस्तान आज एक ही एक खेल खेल रहा है सर हमारे साथ, और वो खेल है कश्मीर। कश्मीर को सामने रखते हुए, कश्मीर पे सिंस इंडिपेंडेंस हमने काफी चीजें की है सर कश्मीर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार कम है या ये कम नहीं, सभी ने कोशिश की है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्ट क्रिएट किए, आपने फाइनेंशियल कनेक्ट ट्राइट किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर इमोशनल कनेक्ट की कुछ कमी महसूस होती है। आज हमारे पास से लाखों लोग कश्मीर जा रहे हैं, खुशी की बात है, मगर कितने लोग कश्मीर से बाहर आ रहे हैं? उनको कश्मीर से बाहर लाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं? आप कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं युवा के लिए, मगर दैट टारगेट इज नॉट इनफ। आप कश्मीरी पंडित्स को रिजर्वेशंस दिए दूसरे एरिया में, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि वो कोटा बढ़ाइए, कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ दूसरे भी बच्चों को, चाहे यहाँ हैदराबाद में पढ़े, चेन्नई में पढ़े और कहीं पढ़े, उनके लिए आप सुविधा दीजिए, रिजर्वेशंस बढ़ाइए। हमको कोई उस पर जो है अभ्यंतर नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि मैं समझता हूं
कि अब अगर हम तेलंगाना से हम जो है सो अगर 100 रुपए बेचते हैं दिल्ली को तो सिर्फ 40 रुपया वापस आ रहा है, और 60 रुपया जो दिल्ली में जमा होता है वो काफी कश्मीर को चले जा रहा है, और कश्मीर में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए खर्च हो रहा है, और वहां का तरक्की, लोगों की तालीम और लोगों की बढ़ाई के लिए कुछ कम हो रहा, ये महसूस हमें होती है सर। क्योंकि मैं आता हूं तेलंगाना से, और ये बात बड़ी गहराई से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तेलंगाना से आता हूं। कश्मीर है ऊपर और दक्षिण में है तेलंगाना, मगर सेम एक्सपीरियंस सर। तेलंगाना का भी यही हाल था, तेलंगाना में भी एक्सट्रीमिज्म था, तेलंगाना में भी बेरोजगारी था, तेलंगाना में भी सूखा था, तेलंगाना में माइग्रेशन था। और मैं 4 टर्म एमएलए कर चुका हूं साहब, और मैं तो बहुत दुख से कह सकता हूं कि 2 टर्म तो मैं कहीं गांव में जा ना पाया लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की गर्मा उतनी थी वहां पे। मगर हमने रिफॉर्म्स लाए। अब कह सकता हूं कि एक केसीआर का फॉर्मूला था, तो एक टर्न अराउंड हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो इनोवेशंस, जो क्रिएटिविटी तेलंगाना में क्रिएट किया गया, सिमिलर सिचुएशन आपको कश्मीर में है, तो व्हाई डोंट यू एक्सपेरिमेंट द केसीआर फॉर्मूला। अगर केसीआर का नाम आपको पसंद नहीं है तो तेलंगाना फॉर्मूला रख लीजिए, तो ये करिए सर। और एक फाइनल सर, फाइनल में मैं ये नोटिस किया हूं कि डिप्लोमेसी तो ठीक है, चल रही है, ठीक है डिप्लोमेसी, मगर व्हाट इज लैकिंग इज द पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी सर। सर आई कैन कोट वन स्मॉल एग्जांपल। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने अपने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मेंबरशिप के लिए, उन्होंने पाकिस्तान का एक खेल था कि उसमें सीपीए में मेंबरशिप लेने की, और जब यहां के स्पीकर साहब जब सोमनाथ चटर्जी थे, वो हमारा एक डेलीगेशन भी जाए सर, पूरा अफ्रीका गए और हर देश में गए, और उनको कहा कि भाई ये पाकिस्तान का साजिश है, वो पीओके को एक रीजन बताते हुए मेंबरशिप ले रहे सीपीए में, अगर आप अग्री करेंगे तो हिंदुस्तान इसमें से निकल जाएगा, वी विल लीव द सीपीए। तो ये धमकी से सारा अफ्रीका सर कहा कि भाई इंडिया इज सीपीए एंड सीपीए इज इंडिया। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चलती है सर। मैंने देखा सर, मैंने देखा जब लोगों का परसेप्शन ऐसा है सर, क्योंकि आज हम टेलीविजन में देखते हैं, जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध खत्म हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमने 3 टेलीविजन में देखे साहब। पहले बोले कि ये टिट फॉर टैट है, इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, वो बात करके निकाल दिए। फिर दूसरी बात ये कहा कि भाई ये तो डिकेड्स की स्ट्रगल है। फिर तीसरी बात ये कहा कि भाई ये तो सेंचुरीज से चल रही है। तो उनका जो है सो कलर ये दिया जा रहा है कि एक हिंदू स्टेट एक मुस्लिम स्टेट से लड़ रहा है, ये गलत बात है। ये बताना चाहिए था कि एक सेक्युलर स्टेट एक टेरर स्टेट से लड़ रही है, और ये हकीकत है। और मैं देखा हूं साहब, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर जगह एक परसेप्शन बनी है। जब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन हैदराबाद आए थे साहब, सीपीए का प्रोग्राम, ये 15 साल की बात कर रहा हूं मैं, जब हैदराबाद आए तो वो लोग मेरे पास आके रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस वक्त मैं स्पीकर था हाउस का। उन्होंने बोला कि सर आज फ्राइडे है, हमें फ्राइडे प्रेयर्स के लिए कुछ मौका मिलता क्या, यहाँ बाजू एक छोटा सा मस्जिद है, क्या हम जा सकते हैं वहां? तो हमने कहा भाई वेट करिए, हम बिल्कुल सुविधा कराएंगे। और मैं उस वक्त हमारे हैदराबाद का एमपी असाउद्दीन ओवैसी से रिक्वेस्ट किया, मैं बोला भाई हमारा डेलीगेशन है सीपीए का, आप मक्का मस्जिद लेके जाइए। और मक्का मस्जिद में जब पाकिस्तान, मलेशिया और दूसरे डेलीगेशन जाके नमाज पढ़े वहां 1 लाख लोगों के साथ साहब, तो उनका परसेप्शन ही बदल गया। उनका परसेप्शन ये था कि हिंदुस्तान में नमाज ही पढ़ने नहीं देते आप, और वो जाके करीबन 1 लाख लोगों के साथ जब वो नमाज पढ़े सर, तो ये इतनी बड़ी बात है कि भाई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी इस तरीके से काम आती है। डिप्लोमेट का एक लिमिटेशन होता है, मगर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का आप देखिए सर, अभी उसको बढ़ाइए, आपके हाथ में है सर। आज हम मेंबर ले रहे हैं, जब मेंबर बनता है पार्लियामेंट का, आप बोलते हैं कि कौन सा देश का मेंबरशिप लेंगे आप, फ्रेंड्स का, बस उसी दिन बोलते हैं कि भाई मैं अमेरिका का हूं, कोई बोलता है कि मैं चाइना का हूं, कोई कहीं और का हूं, बस उसके बाद एक मीटिंग ना होती, एक इंटरेक्शन ना होती। तो ऐसे वक्त पे साहब इसका कमी महसूस होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है सो आपने लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री साइड से इसको आप बढ़ाई दीजिए सर। लेट देयर बी अ कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनका परसेप्शन अलग रहती है, उनका सोच अलग रहती है, और वो पब्लिक के साथ रहती है। और आप जो वक्त मुझे दिए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 4 मिनट्स। सर नमस्कार। सर, सियाचिन वॉर मेमोरियल पे माननीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है
जो कहती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। इन्हीं शब्दों को याद कर कर सियाचिन में हमारे जवान हों या शहीद कारगिल के सुरक्षा के समय पे हों या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हों या ऑपरेशन महादेव जो हुआ है, उन सबको याद कर कर नमन कर कर मैं उनकी शौर्य गाथा में उम्मीद करती हूँ हमारा देश सदैव गाएगा। साथ ही साथ मैं उन सारे परिवारजनों को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगी जिनकी जाने वो पहलगाम में गई, आतंकी हमले में गई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में गई, और वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जो कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको हर पैमाने पे न्याय मिलेगा और नापाक हरकतें जो पाकिस्तान से होती हैं उसको खत्म करने का काम हमारी वीर सेना करेगी। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा वो अभी भी जारी है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम इनकी नापाक हरकतों को खत्म करेंगे। पर कुछ सुझाव मेरे भी हैं। जब पहलगाम हुआ था मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। 2 हफ्ते पहले वहां पे गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। 2019 में जब 370 धारा हटी थी, कौन भूल सकता है गृह मंत्री के वो शब्द जहां उन्होंने कहा था पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा हुआ था, हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब गया था, हम जाने से पहले तिरंगा यात्रा हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने कहा अब बातचीत पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था और अचानक से उस पर फुल स्टॉप लगा, मन में सवाल तब भी था कि क्या हुआ जिस वजह से हमें ये सीज फायर करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ पीओके की बात करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर, हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऑपरेशन सिंदूर वो होना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गर्व है, हम सबको गर्व है, विपक्ष को भी गर्व है क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा। जिन लोगों को एंटी नेशनल कहा गया था 2014 से, उन्हीं ने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया विदेशों में जाकर। मेरे को उसका गर्व महसूस होता है। सर, पर जो हमारे यहां पर पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जवाबदेही किसी ने ली? सर, क्या हमारे इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मांगा गया? जी सर, मैं खत्म ही कर दूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सर, बस 20 सेकेंड में खत्म कर दूं। सर, उस इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा थी। इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ उसके तहत किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लिया। इस्तीफा होने चाहिए सर, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आउटसाइड वर्ल्ड को तो हमने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देकर अकाउंटेबिलिटी तय की, जब तक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हम तय नहीं करेंगे। 20 सेकंड हो गए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। माननीय उपेंद्र कुशवाहा, 4 मिनट। समय बहुत कम है और बहुत सारी बातें कल से आज तक आ गई हैं, इसलिए बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। 10-15 सेकंड बढ़ जाए तो कृपा करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से पहलगांव में जो आतंकी हमला हुए उसमें दिवंगत हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और
उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महोदय, बाद में जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में हमारी सेना ने जिस वीरता, साहस का परिचय दिया, पराक्रम का परिचय दिया, हम इसके लिए अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को आज इस स्तर पे ला के खड़ा कर दिया है कि दुनिया में एक बड़ा मैसेज चला गया कि आज हिंदुस्तान को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो आंख उसकी देखने लायक क्षमता नहीं रखेगी, उसकी क्षमता समाप्त कर दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद। महोदय, जब घटना हुई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात भारत सरकार ने की, उस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था, विपक्ष के लोग भी खड़ा थे। तो मैं देशवासियों को उस एकता के लिए, सेना के साथ एकता के प्रदर्शन के लिए बहुत 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 धन्यवाद देश के लोगों का करता हूं। आज मेरी उम्मीद थी, विपक्ष के लोगों से भी कल से बहस चल रही है, तो मुझको लगता था कि विपक्ष के लोग भी आज संसद के माध्यम से बहस के उपरांत यही मैसेज मिलकर देंगे कि पूरा देश एकजुट है, पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। लेकिन कल से जो बहस हुई, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सोच भी बहुत पुरानी रह गई है, इनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आए विदेश से तो बिहार क्यों चले गए? अब बिहार क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जी से देश के लोग आखिर उस समय क्या चाहते थे? देश के लोग चाहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसके पहले भी कहा था कि अगर कहीं से हमारे देश पर आतंकी कार्रवाई होगी या कोई उस तरह की कार्रवाई विदेशी ताकतों की ओर से भी होगी, तो अब हिंदुस्तान बदल गया है, भारत बदल गया है, हम उनके घर में घुस कर मारेंगे। तो देश के लोग चाहते थे कि जो घटना हुई, उस घटना के बाद हमारी सेना उनके घर में घुस कर उनको मारे। देश के लोग यह चाहते थे और प्रधानमंत्री जी आए हैं विदेश से, उनके मुंह से लोग सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में अब क्या वक्तव्य देते हैं, यह लोग सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी यह बात बिहार में जाकर कहें, दिल्ली से कहें या कहां से कहें, इस बात से देश के लोगों को उस वक्त कोई लेना देना नहीं था। देश के लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम सुने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए बिहार की धरती का चुनाव किया, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां गए और देश के लोगों की जो भावना थी, उस भावना के अनुकूल उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी कल्पना उन लोगों ने नहीं की होगी। और कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं करेंगे, आतंकियों के पीछे जो ताकत खड़ी है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने वहां से कहा और लौटकर उन्होंने कार्रवाई की। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन सवाल पूछा गया कि क्यों प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए। कहा गया, बस 20 सेकंड, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया कि चुनावी सभा करने गए। जिस वक्त प्रधानमंत्री जी गए थे, बिहार में चुनाव था क्या? महीनों दूर चुनाव, और कह रहे हैं कि बिहार में चुनावी सभा करने के लिए गए थे। अब इनकी ओर से कहा जा रहा है, इनकी ओर से 25 सेकंड अधिक महोदय, इनकी ओर से जितना भाषण दिया गया उसमें जितनी बार सेना का नाम इन लोगों ने नहीं लिया, जितनी बार भारत का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा एक विदेशी राष्ट्रपति का नाम इन लोगों ने लेने का काम किया। और उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, इनकी ओर से ही कहा गया। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने 28 बार कुछ कहा है, और कल जब बोल रहे थे 28 बार, आज कहा कि 30 बार उन्होंने कह दिया। तो जो व्यक्ति 28 से 30 बार इस तरह की बात कर रहा है, उसके ऊपर भरोसा है, और हमारे देश के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इनका भरोसा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस बहस में हम लोग हैं, इसमें पूरे देश को एक होना चाहिए, और जिस तरह से
ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई, दुनिया को सबक देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना देने का काम किया। इसके लिए मैं हृदय से फिर से श्री राम जी खत्म। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हमारे सेना के लोगों के मेरी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय सेना के वीर जवानों और उनके अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और बलिदान को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश और देशवासियों की रक्षा करी। मान्यवर, देश में कई बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली हैं, चाहे वो संसद पर हमला रहा हो, चाहे मुंबई में हमला रहा, उड़ी, पुलवामा और पहलगाम में देश और देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। मान्यवर, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के इशारे पर उनके आतंकवादी संगठन करते रहे। यह कोई मात्र एक ही सरकार में नहीं हो रहे, इससे पहले की सरकारों में भी हुए। पहलगाम की घटना तो इतनी विभत्स थी कि निहत्थे देशवासियों से धर्म पूछ उनकी हत्या की गई। इसके बाद सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों और हर भारतीय ने सरकार को खुली छूट दिया कि आप एक्शन लो, हम आपके साथ हैं, और हर देशवासी हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। इसके बाद सरकार ने सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया, जो कि देश हित के लिए जरूरी था। सेना ने कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम के दम पर पाकिस्तान को 3 दिन में घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर अचानक सीज फायर का ऐलान समस्त देशवासियों को झटका और निराश करने वाला था। सभी में चर्चा का विषय था, जब हम जीत रहे हैं तो सीज फायर क्यों। खैर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग में कई नागरिक और बच्चों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में घर तबाह भी हुए। अगर सरकार ने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया है तो उन परिवार वालों को मुआवजा भी देने का काम करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर टर्की और चाइना ने दिया, जिसमें J-10C और PL-15 मिसाइल, ड्रोन टर्की ने सप्लाई किया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, माननीय सरकार से आपके माध्यम से, कि इन दोनों देशों के साथ में हमें सीमित रिश्ते रखने चाहिए। इन लोगों ने हमेशा धोखा देने का काम किया है, हमें बिजनेस और व्यापार को भी सीमित करना चाहिए। मीडिया का रोल बेहद गैर जिम्मेदाराना था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। रात 2 बजे तक मैं दिल्ली में था मानवर, डर का माहौल बना हुआ था। कराची पे नेवी ने हमला कर दिया, कब्जा हो गया है। बाघा बॉर्डर से भारतीय सेना घुस गई है, लाहौर पे कब्जा हो गया। इस तरह के वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हैं। ऐसे सेंसिटिव मैटर पे मीडिया को भी संभल कर बात रखनी चाहिए। माननीय ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा किस्म किस्म की बातें करेंगे, तमाम तरह की पुरानी बातें खोदी गई, देश की आजादी से लेकर किस तरह की बातें जो नहीं भी होनी चाहिए थी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो बातें करी गई। यह ठीक नहीं है, यह राजनीति का विषय नहीं था। हमें यह इंश्योर करना चाहिए देशवासियों को कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी हमारे अंदर कमियां रही, जो भी हुआ, जो भी रहा, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन इन द फ्यूचर हम आतंकवादियों पर कोई भी रहम नहीं बरसेंगे और पाकिस्तान पे कोई रहम नहीं करेंगे, चाहे वो सीज फायर के लिए कितना भी घृणात्मक काम करे। अच्छा होता सत्ता और विपक्ष इस बात पर चिंता करनी चाहिए थी कि आगे भविष्य में महिलाओं के सिंदूर न उजड़े तथा मां को भी अपने बेटे गंवाने न पड़े। इस पर सरकार विपक्ष को मिलकर ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन दुखद ऐसा नहीं हुआ। हमने देश और देशवासियों को स्ट्रांग मैसेज देने का काम नहीं किया, सिर्फ ये पॉलिटिकल अखाड़ा बन करके रह गया। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लिए देश पहले है, देशवासी पहले, राजनीति हमारे लिए बाद में होनी चाहिए। खैर मान्यवर, आखिर में मैं सरकार का ध्यान सेना की भर्ती की तरफ भी लाना चाहता हूं। जब आज पूरे देश के चारों तरफ पाकिस्तान हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, ये तीनों लोग आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो हमें अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, सेना के रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा और सेना के आधुनिकीकरण की तरफ हमें विशेष फोकस भी करना पड़ेगा। मान्यवर, एक चिंता का विषय भी हुआ कि रशिया के अंदर जिस तरह से एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। एक बात बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारा जो बॉर्डर है, चारों तरफ से हम दुश्मन से घिरे हुए हैं, हमारा समुद्र का एक लंबा सा बॉर्डर है, हम बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर मिलता हुआ है, हम चाइना से मिले हैं, हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। माननीय, बस लास्ट में खत्म कर रहा हूं, बस 30 सेकंड। धन्यवाद। मैं इसको लेकर के मैं माननीय सरकार से कहूंगा
कि सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इस तरह की एक्टिविटी कोई भारत के अंदर न होने पाए। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेरा विशेष अनुमोदन है। 30 सेकंड माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहता हूँ। माननीय बांग्लादेश के अंदर माननीय हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं की जा रही हैं। तमाम बांग्लादेशी भाई देश के अंदर आए हुए हैं, उनको यहाँ से न भगाया जाए। माननीय श्री जोश के मनी नॉट प्रेजेंट। श्रीमती रेखा शर्मा। धन्यवाद सभापति जी। Sir, first of all, I would like to give my heartfelt tribute to 26 Hindus who were killed in Pahalgam terror attack. Yes, please. But they were Hindus. They were killed because they were Hindus. They were Indians. They were Indians. Please speak. मैं अपनी बात बैठ करके एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर कृष्णा एवनाच के एक सेंटेंस से शुरू करना चाहूंगी। Imagine waking up to the news that your country just turned a terror haven into a smoldering zip code without losing a single citizen and with the precision of chef slicing onion. That's Operation Sindoor. Not just a military operation, but a moral booster. Law enforcement and international megaphone that says, behave, we have receipts, range and reason. सर, ऑपरेशन सिंदूर कोई पहला आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। पाकिस्तान बनते ही, और पाकिस्तान बना भी इसलिए, अब ये कहेंगे नेहरू को याद करते हैं तो हमारे देश में राम को याद करते हैं तो रावण को भी याद करते हैं। इसलिए ऑपरेशन पाकिस्तान बनते ही और बनना कारण केवल जो नेहरू जी की गलत फेल्ड राजनीति थी, उसके कारण पाकिस्तान बना। उसके 47 में ही वही पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है सर, और उसके बाद भी नेहरू जी यूएन में चले जाते हैं। यूएन से में जाकर पाकिस्तान के जब 49 में हमारे ही भारत के हिस्से को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में उनको दे दिया जाता है। 65 में सर 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन फिर से पाकिस्तान को दे दी जाती है। 71 की वॉर के बाद सर नेहरू जी ने 90,000 बंदी वापस कर दिए, इंदिरा गांधी जी ने वापस कर दिए बिना सुनिए, आप बोले चेयर को एड्रेस करें प्लीज सर। बिना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लिए 90,000 लोगों को वापस कर दिया सर। आने वाले सालों में सर पाकिस्तान ने कश्मीर को दहशतगर्दी का प्लेग्राउंड बनाया, और वो भी थैंक्स टू द कांग्रेस एंड उनकी राजनीति। सर कश्मीरी पंडितों की हत्या होती रही और ये लोग चुपचाप देखते रहे, उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया। लगातार कश्मीर में बम के धमाके होते रहे, ये चुपचाप बैठे रहे और कुछ नहीं कहा सर इन्होंने। और ऑपरेशन सिंदूर पर अब जब बात करती हूं तो सर ये मोदी का नया भारत है, इसमें दुनिया को ये हमारा भारत बता रहा है दुनिया को कि हम हैशटैग नहीं है, हम कार्रवाई करते हैं। हमने ये संदेश नहीं दिया कि हम युद्ध चाहते हैं, हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये बार बार कहते हैं कि आपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया, जब आपने थाली में परोस के दिया था तो क्या सोचा था कि ये हमारे देश का हिस्सा है? सर हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर और मुरीदके के 9 टेरर कैंप्स में टारगेट किया और उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया। India wanted to finish the terror camps and we never wanted a full-fledged war. Sir, the attack was precise with 100% accuracy. Even Pakistan was shocked to know that how India knew the exact location. It was
wasn't just an airstrike. It was India's polite and fairy RSVP to terror groups, and there is no subtle sponsor, and there not so subtle sponsors. India's air defense network stood tall. सर, मैं कहूंगी हमारा ध्येय पूरी तरह से देश में को लड़ाई में धकेलना नहीं था। ध्येय था तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करना, और वो हमने किया भी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत को के न केवल सैन्य बल्कि सिविलियन रिलीजियस प्लेसेस पे भी अटैक किया, और उसका भी जवाब हमने और हमारी सेनाओं ने जमकर दिया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, conclude. जिन्होंने अपनी पूरी आयु एक परिवार की भक्ति और उनकी सेवा में लगा दी हो। और खड़गे जी कह रहे थे आप मोदी जी की भक्ति करते हैं। खड़गे जी, खड़गे जी, आपने ही कहा था कि मैं जो कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। तो आप क्या मोदी जी की सेवा और भक्ति की बात करते हैं? सर प्लीज कंक्लूड। सर, भारत को उतना खतरा बाहर वालों से नहीं है जितना इन घर के भेदियों से है। सर, कांग्रेस हमेशा से देश को कमजोर करना चाहती रही, और सरकार ही नहीं उनकी फौज को भी कमजोर करती रही। प्लीज, थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी। Nothing is going on. Please take your seats. Take your seats. No. माननीय गृह मंत्री जी को बोलने दें। क्या? प्लीज। माननीय सभापति जी, प्लीज let him speak. No. आप अपनी जगह बैठ जाइए, प्लीज। आप प्लीज टेक योर seats. Please take your, nothing is going on. No. आप अपनी बात कहेंगे और सरकार का पक्ष नहीं सुनना चाहेंगे। This is not the democratic behalf. Please, धोला जी बैठिए। Please आप सब बैठिए। नहीं, प्लीज। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बुलाया बोलने के लिए। प्लीज, प्रमोद जी, एक मिनट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है आपको बताएं। लेट देम स्पीक। बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? माननीय गृह मंत्री जी बोले, उनको पूरा अधिकार है आर्टिकल 75 में बोलने का। तिवारी जी बहिष्कार करने का तय कर आए हो क्या? मैं उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहा। रूल क्या है? रूल एक सदन में प्रधानमंत्री नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे। नो, प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। सही नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सेट्स। सुष्मिता जी, प्लीज गो बैक टू योर सेट्स। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी बोले। सभापति महोदय, सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी की बात हो जाएगी। आपका आचरण असंसदीय है। में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हमला हुआ, और उसके जवाब में भारत सरकार ने और भारत की सेनाओं ने जो मजबूत जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप्स को और पाकिस्तान को स्वयं को दिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसका पर सदन में चर्चा पर मैं हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं। भाई एक मिनट सुनो, प्लीज मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। अरे यार, एक मिनट सुनो। आप अपनी भाषण नहीं कर रहा। प्लीज, दिस इज माननीय अध्यक्ष से पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या?
भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगाम हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी, उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर। आप सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर मनोज जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स, देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं, शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं,
माननीय अध्यक्ष जी इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन, प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। पार्शियल सर, आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ को खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला हमारे पास, मैंने भी बताया कि मैंने हर मीटिंग में क्या स्पष्ट किया जो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट इसका काउंटर में लाया हूं मैं। प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर ए तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा का हाथ था, इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर
दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर-ए-तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से एनआईए ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है, कोई शको शुबह भी नहीं बचा है कि इन्होंने मारा था या नहीं था। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था, वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है और ये जो सफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा,
जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। एक मान्यवर, आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं हैं। चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए, और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और अभी अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया। उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का, और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कोई कहता है कि आज ही क्यों मारे गए। अब देखिए साहब, भाई कितना जिंदा रखना चाहते हो? मैं भी पूछता हूं आज क्यों मारे गए, मैं तो दूसरी सेकंड मार देना चाहता था, मगर इतना सरल नहीं है। जिन ऊंचाइयों पर ये छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर मारा है, और आप मुहूर्त पूछ रहे हो क्योंकि क्यों नहीं मानना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। मगर
हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मान्यवर, आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताना चाहता हूं। 22 अप्रैल को हमला हुआ। 22 अप्रैल को ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। वो विदेश थे। लगभग 2-2:30 बजे के सुमार पे बात हुई। मैं शाम होने से पहले ही श्रीनगर पहुंच गया था। दूसरे दिन सुबह सुरक्षा बैठक उसी रात को कर दूसरे दिन सुबह जहां मृतदेह थे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। मान्यवर, मेरे जीवन का ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक 6 दिन की शादी, एक बच्ची ने जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं, वो विधवा होकर हमें पूछती थी कब इसका बदला लिया जाएगा। मान्यवर, सब लोग शुद्ध थे, ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, ना पीने की स्थिति थी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं भूलता। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है। मान्यवर, ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन कर इनके परिजनों के सामने मारे, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। मान्यवर, 23 अप्रैल को, इसके पहले मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार की जनसभा में जो कहा था वो चुनावी सभा नहीं थी। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाओं को दुनिया के सामने ढंग से रखे। मैं कोट अनकोट उनके भाषण को पढ़ता हूं। मैंने 22 अप्रैल को पहलगांव का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हुआ एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों के बीच बची खुची जितनी भी भूमि है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा, उनको दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के हर प्रयास किए जाएंगे। और आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनकी दूरदर्शी। उनका बोला हुआ एक एक शब्द आज सच हुआ है। उन्होंने कहा था आतंकवादियों की बची खुची जमीन मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। साहब, उनके ट्रेनिंग के बाद मिट्टी में मिले हैं, इनके हेडक्वार्टर मिले हैं, उनके लॉन्च पैड भी मिट्टी में मिलकर जमीन दोस्त। उन्होंने कहा कि इनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाद में लिस्ट पढ़ता हूं। इनको भेजने वालों को भी हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मान्यवर, एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। मान्यवर, 23 अप्रैल को ही एक सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सीसीएस की मीटिंग में कठोर
संदेश देने का काम न केवल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत की संप्रभुता इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने तय किया सीसीएस की बैठक में 1960 की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई एक तरफा पाकिस्तान के फायदे वाली सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक लिया जाए। मान्यवर, ऐतिहासिक फैसला है। हम सब वर्षों से मानते थे कि हिंदू जल संधि एक तरफा है, हमारा पानी 80% वहां नहीं जा सकता। मान्यवर, वहां तक कि वहां से गाद निकालने की भी परमिशन, उनकी कैनाल बनाने के पैसे भी भारत ने भेजे। और मान्यवर, ये पानी पर अधिकार है भारत के किसानों। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का पीने का पानी अब कुछ ही समय में सिंधु के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचेगा। एकीकृत जांच चौकी अटारी की जो चल रही थी, उसको हमने बंद कर दिया। सार्क वीजा समाप्त कर दिया। 24 घंटे में सारे पाकिस्तानी नागरिकों को हमने वापस भेजना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और दोनों उच्चायोग में स्टाफ को कम करा दिया गया। 55 से घटकर 30 करा दिया। और सीसीएस ने संकल्प लिया कि भेजने वाले और कृत्य करने वाले दोनों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए सेना को खुली छूट देने का काम सीसीएस ने। ये पूछ रहे थे कल, क्या हुआ, कैसे हुआ? सीसीएस के फैसले जो है वो मीडिया में आए थे, मगर उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारे जो फैसले लिए वो उनके द्वारा किए हुए निर्णयों को रद्द करने के और उनकी नीतियों के खिलाफ जो निर्णय हुए वो है। मान्यवर, 30 अप्रैल को सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों मिलकर तय करेंगे टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, स्थान क्या होगा और समय क्या होगा। और इसको हमारे सेना के जवानों ने इसको बहुत बखूबी निभाया। मान्यवर, मैं तीनों सेनाओं को इस सदन के इस चर्चा में बहुत बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देना चाहता हूं। 7 मई को रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कम से कम 100 लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे, मगर कम से कम 100 मरे हैं। और मान्यवर, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने। और मान्यवर, हमने तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी। हमने उनको बताया मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के महमूना जाया कैंप सियालकोट, शारजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाल कैंप बिम्बर्ग और अब्बास कैंप कोटली, उसको हमने समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकारों को उपयोग करते हुए कहा है, हमारी कार्यवाही समाप्त हुई है। मैं बाद में आता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मानो, हमने तो हमला किया था, आतंकवाद
आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। और उन्होंने 8 मई को अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी, हमारे सेना के इंस्टॉलेशन पर मिसाइल शो, ड्रोन फेंक, कोई पहुंच नहीं पाया, मगर नदी की सीमा में गोलीबारी से निर्दोष नागरिक जो घूम रहे थे वो हताहत हुए। मान्यवर, फिर भी भारत ने संयम रखा। उन्होंने गुरुद्वारा तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ नहीं बोले। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन और एयरबेस। 8 एयरबेस नूरखान, मुरीद, सरगुर्दा, रफीकी, रहम यार खान, जकोबाबाद, सुक्कुर, भोलारी, 6 रडार सिस्टम, सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला, चुनेन, जकोबाबाद और नयाचौर, और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल्स की सिस्टम लाहौर और ओकारा की। पाकिस्तान ने हमले के बाद मान्यवर लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ? किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई थी, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि वे 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ, रोज 5 फोन आते थे। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का प्रमुख, मौलाना मसूद का बड़ा बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा का प्रभारी, मोहम्मद हमजा जमील जैम और ऑपरेटिव मसूद अजहर का भतीजा, मोहम्मद यूनुस अजहर जैसे मोहम्मद का अमीर, मोहम्मद हसन खान जैम ऑपरेटिव, मोहम्मद हसन वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जैम का वास्तविक प्रमुख अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोमान मलिक, ये सारे इतने घायल हुए हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। मान्यवर, ये जो हमला हुआ वो उन्होंने इनके दिल पर हमला किया है, आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया। मान्यवर, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर इस सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, ये चिदंबरम साहब कल भाषण में बोले कि ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था। चिदंबरम साहब यहां है नहीं,
मगर मैं उनको जवाब देना जरूर चाहता हूं कि चिदंबरम साहब, अगर 65 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो फिर टेररिज्म क्यों फैला? 71 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो टेररिज्म क्यों फैला? और अनेक बार जो कार्यवाही हुई वो निर्णायक थी क्या? मान्यवर, जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक अंत नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों डरेंगे वो? हम तो डोजियर पर डोजियर भेजते रहे, कभी उनको जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर। खौफ पैदा हो गया है। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सूचना नहीं, रात को भी जब जाते होंगे, स्वप्न में हमारी मिसाइल से दिखाई पड़ती होती है। ये डर से ही शांति होती है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है मान्यवर। मगर चिदंबरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप वोट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। मान्यवर, भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। चीन के कई जवानों ने चीन की लड़ाई के बाद लिखा, हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। घनघोर ठंड में पहनने के लिए हमारे लिए ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मान्यवर, आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है, आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है मान्यवर। और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन हुआ। गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं, लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही
आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। मान्यवर, ये हमला कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता, रातों रात जेरॉक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। मान्यवर, और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है। मान्यवर, और नेतृत्व सम्मानीय मोदी। मान्यवर, ये संघर्ष विराम के लिए भी कई सारे कह रहे हैं। मैंने कल सुना रहा, पीओके क्यों नहीं लेंगे, इतना उछल उछल कर बोलते थे। और ये यहां पर काफी विद्वान लोग बैठे हैं, इनको कुछ संसद की मर्यादा, संसद में बात करने का तरीका, मतलब वास्तविक चीजें बोलने की पद्धति कुछ नहीं सिखाते। मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा, और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है, जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है। वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। और जब पाकिस्तान ने ही कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है, तब हमने इसको स्वीकारा। और कहते थे, मैं बाद में बताऊंगा मान्यवर, वो हमें कहने लगे कि भाई क्यों करा, ये ले लेते, वो ले लेते। मैं बाद में जब आपके समय में जो घोषित युद्ध हुए, ये तो घोषित युद्ध नहीं था मान्यवर, मगर घोषित युद्ध हुए कांग्रेस के समय में, इसमें आपने क्या किया है वो बाद में मैं मान्यवर बताता हूं। उसके पहले मैं आतंकवाद के परिदृश्य पर, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद का परिदृश्य और देश का परिदृश्य, इस पर बताना चाहते हैं। मान्यवर, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन भी कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर किया है। उनके समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 नासूर मिले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। पहले कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, ये 3 नासूर मिले। और 30 से 40 वर्ष तक ये नासूर भारत की धरती को रक्त रंजित करते रहे। न जाने कितने लाल हमारे सेना के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के मारे जाते रहे, शहीद पर शहीद। न जाने कितने निर्दोष किसान, न जाने कितने निर्दोष नागरिक आतंकवाद, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद की भेंट चढ़े, मगर कुछ नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कश्मीर के उग्रवाद के बारे में बाद में आता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद दोनों क्षेत्र में हिंसा में 75% की कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये विषय नहीं है, परंतु कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था,
वो मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, इसका कारण क्या था? इसके कारण के मूल में जाना चाहिए। जब से कश्मीर का सृजन हुआ, धारा 370 बनाई गई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसका समर्थन और इतने लंबे समय तक किसने चला? कांग्रेस ने चला है। मान्यवर, इसका स्वरूप क्या था? धारा 370 और 35 से क्या कहती? कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, और 5 अगस्त 2019 तक ये अलग ध्वज और अलग संविधान चलते रहे। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या की। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं है, हमें कुछ और मिल सकता है, हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्र ध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले, उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान, और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई, और वो ही आतंकवाद का मूल बना। मान्यवर, और इसके बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले सारे संगठन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण चलते रहे। मान्यवर, जमायत-ए इस्लामी, कई सारे संगठन जो बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में धार्मिक कट्टरता पर बढ़ाते रहे, अलगाववाद बढ़ाते रहे, चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया। बैन लगाएंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मान्यवर, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप बनाए, और ये टेरर ग्रुप के प्रवक्ता, इसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हर टेरर ग्रुप ने अपना एक ग्रुप, सिविलियन ग्रुप बनाया, इसके साथ चर्चा करते रहे, और उनके परिणाम स्वरूप यहां आतंकवाद बढ़ता गया। मान्यवर, मैं आज स्वर्गीय शम्मी कपूर को भी कोट करना चाहता हूं। शम्मी कपूर जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अमित भाई, मेरा जब गोल्डन पीरियड था, मेरा साल का 30% टाइम कश्मीर में जाता था, इतना शूटिंग होता था कश्मीर, और मैं वहां के लोगों को मिला हूं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, महिलाएं प्रोग्रेसिव थी, धर्मनिरपेक्ष बात करते थे, सूफी संतों की बात करते थे, वहां पर कश्मीरी पंडित भी मिलते थे। आज मैं देख रहा हूं कि वो बच्चियां पथराव कर रही है। क्या हो गया? किसने बिगाड़ा? तब मैं इसके नीचे गया था। मान्यवर, तब मालूम पड़ा कि ये जमात इस्लामी ने पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर कब्जा जमा कर रखा था, और बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जहर घोलना शुरू किया। तब जाकर ये स्थिति हुई। मगर कोई भी कभी भी ये कांग्रेस इसके मूल में नहीं गई, और मान्यवर, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि ऐसा नहीं चल सकता, और 5 अगस्त 2019 को यही ऐतिहासिक सदन में धारा 370 और 35 समाप्त, और उसके बाद शुरू हुआ टेररिज्म को फैलाने वाले, अलगाववाद फैलाने वाले टेररिस्ट और इनकी इकोसिस्टम संपूर्ण सफाई का एक युग शुरू हुआ। मान्यवर, धारा 370, 35 से हटाए गए, जीरो टेरर प्लान बना, एरिया डोमिनेशन की योजनाएं बनी, कैपेसिटी बिल्डिंग की योजनाएं बनी, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट लगाया गया, तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया, जेल प्रबंधन बढ़ाया गया, ड्रोन रोधी सिस्टम और गन तैनात किए गए। मान्यवर, हम सब ने देखा, देश की जनता ने देखा, कई आतंकवादी मारे गए, 10-10 हजार के जनाजे निकलते थे। मान्यवर, हमने कठोर निर्णय लिया, आतंक में लिप्त किसी भी व्यक्ति का जनाजा नहीं निकलेगा, जहां मरेंगे वही दफना दिया। और मान्यवर, इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने विरोध किया था, आतंकी समर्थन को चूर चूर कर
नौकरियों से निकाला गया, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हेतु इनको अघोषित किया गया। 75 पाकिस्तानी समर्थक सरकारी कर्मचारियों को ड्यू लीगल प्रोसेस से बर्खास्त करा दिया गया। बार काउंसिल सस्पेंड कर भारत के संविधान को मानने वाली बार काउंसिल प्रस्तावित की गई। यूएपीए अदालतों की स्थापना हुई और लगभग मई 22 से लेकर मई 25 तक 2267 प्रकरण यूएपीए के दर्ज हुए। इनकी पूरी टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया। एनआईए और ईडी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई एसओपी बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमाते इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया और दूसरी ओर मान्यवर इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायते इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीके हुरियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और पीएफआई को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज टाउन पिल्टिंग, हमने भी दृश्य देखे हुए जो समय कपूर ने चिंता की थी। छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी। 2564 सालाना होते थे। 2564 पथराव की घटना हुई थी। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई है। मान्यवर इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा मगर समाप्ति के कगार पर है। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7217 हुई। 7217, 7217 और जून 15 से मई 25 तक 2150, 70% की कमी हो गई। आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी। नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है। मान्यवर 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं। मान्यवर 49% की कमी। मान्यवर इसके साथ साथ हमने कश्मीर के अंदर ढेर सारा काम किया है। मान्यवर लगभग 59,000 करोड़ की 53 परियोजनाएं, चिनाब पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बना, 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल सुरंग बनी, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला तक रेल पहुंची, जोजिला सुरंग और बनिहाल सुरंग बने, रोजगारी का सृजन 63,000 लोगों का हुआ। जम्मू देश का पहला शहर बना जहां IIM, IIT और एम्स तीनों संस्थान वहां पर है। मान्यवर पहला शहर लगभग
ऐसी स्थिति कश्मीर में भी तीनों प्रोग्रेस पर है। 40,000 नौकरियां दी, विस्थापितों को प्रतिनिधित्व दिया, कश्मीर विस्थापित कश्मीर पंडितों के 2 सदस्यों का नामांकन करने का कानून लेकर आए, और सबसे बड़ी बात मान्यवर, हमने भारत के संविधान का झंडा कश्मीर में फहराने का काम। ये पूछते हैं क्या हुआ? पहले 3 परिवारों तक राजनीति थी, ना पंच था, ना सरपंच था, ना तहसील पंचायत थी, ना जिला पंचायत। आज जम्मू कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा कर। मान्यवर, पहले चुनाव होते थे। मुझे एक सेना के रिटायर्ड जनरल मिले, बाद में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, अमित भाई, हमारा काम तो मुख्य सुरक्षा का नहीं था, वो तो भगवान भरोसे थे। सबसे बड़ा काम फर्जी वोटिंग करना। कराते थी प्रशासन, हम इनकार करते थे। कई लोगों को मेमो दिए गए, फिर भी हम अड़े रहते थे। 3%, 4% वोटिंग होती थी। आज नरेंद्र मोदी के शासन में जिला पंचायत के चुनाव में 98.3%। जनरल इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग आजादी से। ये बताता है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है मान्यवर। और 63% हुआ, और 1,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर, ये क्यों हुआ? मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं भी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले, तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था। अहरनीश सुधर। मान्यवर, 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी, और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। अगर मोदी जी करते हैं वो बताते नहीं है, मगर मुझे कुछ तो मालूम है, क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे। इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर, आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने ही नहीं पड़ते। हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड इस सदन को बताता हूं। 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है, और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तान। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ था कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो मां बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर, आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है। मान्यवर, मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी, जिससे इनको सजा कराई जाए। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, एक कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त
सदर सेशन में पारित कर दिया गया और कोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी ने इसके घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में कोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा कर रहे। और मान्यवर देखिए, पहली कैबिनेट में ही इन्होंने पोटा के कानून को रद्द कर दिया। और ये कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी, आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो। मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2005 में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ। मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलल्ला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007 2 बम धमाके हैदराबाद में, 44 लोग मारे गए। 7 यूपी में धमाके हुए, 13 लोग मारे गए। 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, 2008 आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए। 2008 आतंकी हमला हुआ, 246 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में 8 बम धमाके, 2008 अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 दिल्ली में 5 बम धमाके, 2010 जर्मन बेकरी बम धमाका, 2010 वाराणसी में बम धमाका, 2011 मुंबई में बम धमाका, 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गए मन में। और हमें पूछ रहे कि आपने क्या किया? 100 दिन तक पूछते ही रहे, कहां गए, क्या किया, क्या किया, क्या किया। अब मुझे बताओ भाई, 2005 से शुरू कर 2011 तक आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए, और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया? ये जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर, 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए। और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं हुई। और कश्मीर में भी हुई, उरी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चेताया। पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चेताया। अब नहीं सुधरते हैं, दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं? पहलगांव में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा, अमित जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते। बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते। आप किसको प्रोटेक्ट करें? मगर वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस।
इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं। मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं। मान्यवर, इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही है, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी दृढ़ता के साथ हमारा। मान्यवर, कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान्यवर, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते हैं। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर, 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते, और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं। मैं आज चीज भी लेकर आया, मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं, और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता, धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र। कल हमें सवाल पूछे थे, और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया
हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी इस देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था? कितना पैसा लिया गया? चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो? और आप प्रतिपक्ष के नेता हो और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई और साहब इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, कहते हैं वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। अब नेहरू जी का सर मेरे जैसा था साहब, तो हमारे महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि साहब आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, क्या इसको चीन भेज दे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कितने इरिस्पॉन्सिबल जवाब हो। और अभी संधि की बात करें मान्यवर, मैं 71 के युद्ध में हमारा विजय हुआ। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी, इस देश की दिवंगत प्रधानमंत्री जी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लिखवा लेती, तो आज आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता था। मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी आ जाता। मान्यवर, इसके साथ साथ हमारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में था पाकिस्तान, वो भी दे दिया। पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को दे दिया। हमारे सिर्फ 54 पकड़े गए थे, वो वापिस नहीं आए। आज भी इनके परिवारजन उनकी राह देख रहे। मान्यवर, क्या संवेदनशीलता है, क्या समझौता किया आपने? और साहब, जनरल मानेकशॉ, जिनको 71 युद्ध का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जनरल मानेकशॉ के इंटरव्यू में कहते हैं, शिमला में भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। वो इंटरव्यू अंग्रेजी में, इसलिए मैं कोट अनकोट पढ़ा था। आई टोल्ड हर, इनटू ब्रैकेट उन्होंने छापा है इंदिरा गांधी, दैट आई टोल्ड हर दैट ही, इनटू ब्रैकेट भुट्टो, आई टोल्ड हर दैट ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। और ये हमें पूछ रहे संधि क्या? हमने तो युद्ध ही घोषित नहीं करा था, संधि किस चीज की भी? हमारा एक लिमिटेड एग्रेशन था, टेररिज्म पर हमारा हमला था, और हमारे आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए, और हमें पूछ रहे हैं। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए। और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता, मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता। उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज तक देश पछता रहा है। मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी देश की फजीहत कर दी। मुंबई अटैक के बाद शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ, जिसको पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में बलूचिस्तान ब्लंडर के नाम से जानते हैं।
उसमें प्रस्ताव किया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। अब भला दुनिया में कोई पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कह सकता है क्या? लोग हमारे मरे हैं, जवान हमारे मरे हैं, और आपने उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया मान्यवर। और भारत पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में भी बलूचिस्तान का जिक्र किया। इनका आंतरिक मामला था मान्यवर, हमारा कोई लेन देन नहीं है बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही। मनमोहन सिंह स्वीकार कर आए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टेरर की घटना और वार्ता, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। भगवान भला करे, देश की जनता का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो चीज को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी। जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, वार्ता नहीं हो सकती। मान्यवर, आज ये लोग जो बोल रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी को G20 कई सारे देशों को मिला है। राजीव गांधी फाउंडेशन में एक स्टडी करा दो, हर देश में हुआ G20 और भारत में हुआ G20। हर देश की राजधानी में जाता है। मोदी जी G20 को हर राज्य में ले गए। हमारी संस्कृति, हमारी क्षमताएं, हमारा पावर, हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि पूरे अब तक के G20 सम्मेलन में सबसे सफल G20 सम्मेलन है। और मान्यवर, इसीलिए पूरी दुनिया में कई सारे राष्ट्राध्यक्ष है। मान्यवर, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। और ये विदेश नीति की बात है। 27 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हैं। भाई साहब, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत की 140 मोदी जी ने देश को सम्मान दिला है, देश की 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित किया है। मोदी जी का नेतृत्व जो है भावुक नहीं है। भावुक नेतृत्व होता है, वो रोने भी लगता है, कई बार शकम भी हो जाता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी है। मैंने देखा है कोरोना 370 ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा छोड़ दो। कोरोना में मैंने देखा है इससे बड़ी आफत इस सहस्त्राब्दी में भारत पर नहीं आई। अड़ीग होकर अपने रास्ते पर चलते रहे, और जब कोरोना समाप्त हुआ, पूरी दुनिया ने कहा सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया। और उसका कारण जब ढूंढा गया, मैं भी स्टडी करने वाले कुछ लोगों को मिला था मान्यवर, जब कारण पूछा गया, स्टडी किया गया, तो सबने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के सामने सरकारें लड़ती थी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार और 140 करोड़ लोग एक साथ कोरोना के सामने लड़ते थे। मजाक उड़ाते, घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा, दिया जलाने से चला जाएगा, कर्फ्यू करने से अपने आप चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था, जनता के मन में जागरूकता लाते थे। और जब, मुझे तो ठीक याद है, मोदी जी ने टीम गठित की टीका बनाने के लिए, तब जयराम रमेश जी, नाम मत लीजिए, रिकॉर्ड पर मत लीजिएगा, तब कांग्रेस वाले इनका मजाक करते थे कि भारत टीका बना लेगा। मान्यवर, सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में भारत है, और इसी के कारण हम बचे थे। मान्यवर, 11 साल में समग्र दुनिया ने भारत की क्षमता को स्वीकारा है। भारत 11वें नंबर से
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी हमारा 4.19 ट्रिलियन हो, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनी। प्रति व्यक्ति आय, जयराम रमेश जी हमेशा पूछा करते हैं, निर्मला जी बताती भी नहीं है, 68,572 से बढ़कर 1,33,488 हो। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा, 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, 31 लेकर मोदी जी ने इनिंग शुरू करा था, अभी समाप्त नहीं हुआ। 136 वंदे भारत ट्रेन है, 1500 ट्रेन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। 97% से अधिक भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के कगार पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी सरकार में 118 यूनिकॉर्न बने। रक्षा क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ हुआ और निर्यात 21,000 करोड़ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पुल भारत में है, विश्व का सबसे लंबा पुल भारत में है। देश का सबसे लंबी अटल सेतु भारत में बनी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल मोदी जी के समय में हुआ और सबसे बड़ा एनएच भी मोदी जी के समय में बना। और सबसे बड़ी उपलब्धि, कई पीढ़ियों से गरीबी जिनको डस रही थी मान्यवर, 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, गैस, शौचालय, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का इलाज देने का काम। ये नहीं समझ रहे। आपकी जो इच्छा हो, मैं मान्यवर एनालिसिस के साथ इस सदन में जिम्मेदारी के पूर्वक कहना चाहता हूं, जब भी भारत की आजादी का इतिहास 25 साल के बाद शताब्दी के वर्ष लिखा जाएगा, ये मोदी एरा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, किसी ने समझा। और मान्यवर, कई सारे चीजें जो भारत के स्वाभिमान से साथ जुड़ी थी, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के सम्मान के साथ, वो सारी चीजों को इन्होंने 75 साल तक लटका कर रखा। मैं आज एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। अचीवमेंट जो हुए, आर्थिक विकास हुआ है, प्रजा का आत्मगौरव उड़ा है। आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया, यूसीसी शुरू हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में रंग चंग के साथ हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा पर हमने बल दिया। काशी, उज्जैन, शारदा पीठ, करतारपुर कॉरिडोर बनाए, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया, योग को वैश्विक पहचान दिलाई, नया सैनिक चिन्ह वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के निशाने पर रखा, संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का स्वदेशी निर्माण किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम बदलकर सुभाष बाबू और परमवीर चक्र विजेता बने हुए हमारे सेनानियों पे एक साथ रखे। और इसके साथ साथ कई सारी उपलब्धियां ये एरा में हुई। मान्यवर, सबसे बड़ी उपलब्धि है 2047 में मुझे एक विदेशी पत्रकार ने कहा, मैं लंबा बैठा था, मैं उनकी थॉट प्रोसेस को जानना चाहता। अब मैं जो सुनना चाहता था तीसरे ही वाक्य में आ गया कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं उनको पूछा क्यों? उन्होंने कहा अब तक भारत ने अपना लक्ष्य ही तय नहीं किया था, कैसे अचीव करता। मैंने बोला अब क्या हुआ कि अब मोदी जी ने तय कर दिया कि जब 100 साल का भारत होगा, आजादी के 100 साल होंगे, तब विश्व में हर एक क्षेत्र में हम नंबर 1 पर होंगे और महान भारत। और मान्यवर, मुझे मालूम है मोदी जी का भाषण, मोदी जी का संदेश आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना हुआ है और मुझे विश्वास है 140 करोड़ भारतीयों पर और हमारे युवाओं पर। शायद हम में से काफी लोग 2047 में नहीं होंगे, परंतु 2047 में जो भी भारतीय होंगे वो देखेंगे कि विश्व में भारत
नंबर 1 बन चुका है। मान्यवर, भारत को नंबर 1 बनना है तो हमारी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, युद्ध होता है तो हमला वहां पर से भी होता है, यहां से पर से एक भी हमला ऐसा नहीं जाएगा जिसका जवाब दिया नहीं जाएगा, और आतंकवाद को हम समाप्त कर रहेंगे। 31/3/26 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका नहीं। अंत में जिन जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सम्मान के साथ उनका धन्यवाद कर और फिर से एक बार ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सभी को पूरे सदन की ओर से और व्यक्तिगत मेरे रूप से बहुत बहुत साधुवाद देकर The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 31st July 2025.